डिस्कस किए थे, कौन सा 37 श्लोक में, 38, 37। ओके, 38 श्लोक में इति मूर्ति अभिधाने न मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम सम्यक दर्शनापुमान. Thus he is the actual seer who worships in the form of transcendental and sound representation the supreme person of Godhead Vishnu, who has no material form. अमूर्तिका उनसे उनका material form नहीं है. He is total spiritual. Our purport Srila Prabhupada ki jai. Our present senses are all made of material element and therefore they are imperfect in realizing transcendental form of Lord Vishnu. He is therefore worshipped by sound representation via the transcendental method of chanting. Anything which is beyond the scope of experience by our imperfect senses can be realized fully by sound representation. इस शब्द process हम लोग कल discuss किए थे. A person transmitting sound from a far distant place can be factually experienced. If this is materially possible, why not spiritually? तो दिस बहुत दूर से भी साउंड को हम सुन सकते हैं, तो इसीलिए स्पिरिचुअल साउंड भी हम गोलोक वृंदावन से भी सुन सकते हैं. तो दिस एक्सपीरियंस इज नॉट ए वैग impersonal experience. It is actually an experience of the transcendental person of Godhead who possesses the pure form of eternity, bliss and knowledge. In the Amar Kosha Sanskrit dictionary, the word murti carries import in the twofold meaning, namely form and difficulty. Therefore, amurtikam is explained by Acharya Sri Vishwanath Chakravarti Thakur as meaning without difficulty, without form and without difficulty. The transcendental form of the eternal bliss and knowledge can be experienced by our original spiritual senses, which can be revived by chanting of the holy name, holy mantra, or the transcendental sound representation. Such sound should be received from the transparent agency of the bona fide spiritual master, and the chanting may be practiced by the direction of the spiritual master. That will gradually lead us nearer to the Lord. This method of worship is recommended in the Pancharatrika system, which is both recognized and authorized. The Pancharatrika system has the most authorized codes for transcendental devotional service. Without the help of such codes, one cannot approach the Lord, certainly not by dry philosophical speculation. The Pancharatrika system is both practical and suitable for this age of Kval. The Pancharatra is more important than the Vedanta for this modern age. तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ chanting दिस होली नेम होली मंत्र यहाँ पे दिया गया है. और ये मंत्र ट्रांसेंडेंटल है, स्पिरिचुअल है, तो इसलिए ऑर्डिनरी साउंड से ये अलग है. और ऑर्डिनरी साउंड ऑल्सो भी दूर से हम रिसीव कर पा रहे हैं, तो ये साउंड भी भगवान का गोलोक वृंदावन से हम रिसीव कर सकते हैं. और ये मेटेरियल सेंसेस के माध्यम में हम मेटेरियल चीज को परसीव करते हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअल सेंसेस का माध्यम में स्पिरिचुअल चीज को परसीव करना है. तो इसीलिए हमारा मेटेरियल जो सेंसेस है उसको स्पिरिचुअलाइज होने से इसको रियलाइज एक्चुअली कर सकता है. तो धीरे धीरे मेटेरियल को स्पिरिचुअल कराना है. इमं सोनिगमं ब्रह्मन् अवेद्यमन मद अनुस्थितम् आदर्मे ज्ञानम अशैश्वर्यम स्वस्मिन् भवाम च केशव. Prabhupada ki jai. O Brahmana, thus the Supreme Lord Shri Krishna. Thus by the Supreme Lord Krishna, I was endowed first with the transcendental knowledge of the Lord as inculcated in the confidential parts of Vedas, then with the spiritual opulences, and then with his intimating voice, loving service. So, purport. Communion with the Lord by transmission of the other transcendental sound is non-different from the whole spirit of Lord Shri Krishna. तो भगवान उनका नाम रूप गुण लीला से अभिन्न होते हैं, इसलिए भगवान को गुण श्रवण साउंड को रिसीव करने का मतलब है कि ग्रेजुअली हम उनका डिफरेंट फॉर्म को भी रिसीव करते हैं. It is a completely perfect method for approaching the Lord by such pure contact with the Lord without offense of material conception. The devotee can rise above the material plane to understand the inner meaning of the Vedic literatures. His identity gradually, including the Lord's existence, the transfer from the Lord reveals his identity gradually to one who is unflinching faith both in the spiritual master. हम लोग ये काल डिस्कस किया था. तो भगवान का नाम का माध्यम से भगवान को अप्रोच करते हैं, देन ग्रेजुअली हम उसमें अगर परफेक्शन आएगा तो भगवान का नाम का बाद में
रूप को हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, देन गुण देन लीला। तो लाइक दैट भगवान का नाम और रूप गुण लीला को हम भाई नाम का माध्यम से ही रियलाइज करते हैं। हम लोग अलग से भगवान को जो हम लोग ध्यान कर सकते हैं भगवान का रूप का ऊपर में, लेकिन नाम को परफेक्टली बिना अपराध में 10 अपराध को छोड़ते अगर करते हैं तो उसमें अगर परफेक्शन होता है, शुद्ध नाम होता है, तो ऑटोमेटिकली भगवान का भी रूप को हम जान सकता है, या भगवान का रूप को हम रियलाइज कर सकता है, उसको हम उसको धारण कर सकता है। तो नाम को परफेक्ट करने से देन रूप को भी ऑटोमेटिक उसका बाद में रूप आ जाता है हमारा इसमें। तो सेपरेटली हम लोग चैंटिंग का टाइम में भगवान का अलग से रूप को अलग से ध्यान करने का जरूरत नहीं है। हम भगवान का जो वाइब्रेशन है उसको हम लोग रियलाइज करेगा मैंने। हाँ क्या हरे कृष्ण अच्छा। तो इसलिए a pure devotee is more interested in serving the Lord than in showing an exhibition of the mystic powers dominant in him। तो जो शुद्ध भक्त है वो उसको अगर कुछ स्पिरिचुअल पावर, मिस्टिक पावर, योगिक पावर भी है तो उसको दिखाने के लिए उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो भगवान की सेवा के लिए इंटरेस्ट है। नारद हैज एक्सप्लेन्ड। इसलिए एक बार शिला प्रभुपाद गए थे पीसी सरकार का मैजिक शो में वो थे। एक बार ऐसे गए थे तो पीसी सरकार का मैजिक खत्म हुआ तो देन वो आके प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद कैसे लगा मेरा मैजिक? तो बोला हम अच्छा है। तो आप मैजिक कर सकते हैं क्या? प्रभुपाद बोले यस आई कैन डू मैजिक। आई कैन नॉट डू दिस मैजिक। आप जिस टाइप का मैजिक कर रहे हो वो मैजिक हम नहीं कर सकता है, लेकिन हम दूसरा टाइप का मैजिक कर सकते हैं। क्या है ना? आपको अगर हम बोले आप जन्म मृत्यु को बंद कर सकते हो, तो फिर का जो ऑनेस्ट सो ही टोल्ड नो आई कैन नॉट स्टॉप दिस डेथ। तो प्रभुपाद बोले कि आई कैन स्टॉप द डेथ। तो देन ही गॉट एस्टोनिश्ड। तो इसलिए प्रभुपाद का मैजिक एक छोटा मोटा मैजिक नहीं है, तो दैट इज अ ग्रेट मैजिक कि रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक बार कोई आके बोला कि प्रभुपाद देखिए ये गंगा नदी क्रॉस करते हैं, जहाँ पे मायापुर में गंगा नदी क्रॉस करके आते हैं नवद्वीप से मायापुर तरफ में, तो उसे नाव में क्रॉस करते हैं। तो एक जोगी थे जो कि मिस्टिक पावर था उसका पास में, तो ही कैन वॉक ऑन द वाटर, पानी का ऊपर में चल सकता है। तो ये पानी का ऊपर में चल के क्रॉस करके गया है, देखा है, देखिए 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 वो पानी का ऊपर में नदी का ऊपर में चल जाता है, चलते पैदल में जाके क्रॉस कर जाता है। ये योगिक पावर है। तो बोला प्रभुपाद को बोला देखिए कितना बड़ा मैजिक ये कर, मैंने ये कितना सिद्ध पुरुष हो गया। तो शिला प्रभुपाद बोला ये सिद्ध पुरुष इतना क्या जरूरत क्या है, इसको सिद्धि को लेके इसको पानी का पार करने का जरूरत क्या है, उसमें 25 पैसा में हम लोग क्रॉस कर जाते हैं। तो वो बोला 25 पैसा देने से बोट में क्रॉस करते हैं हम लोग, तो इसको इतना सिद्धि करके इसको चल के पैदल क्रॉस करने का क्या जरूरत है। तो दैट्स द थिंग। तो ये जोगी का पावर है। तो ये जो रियल जोगी है ये भगवान जी हाईएस्ट मिस्टिक जोगी। तो और इसीलिए अगर भी उनका पास में कुछ पावर भी है, शुद्ध भक्त का पावर पास में, वो इसको अननेसेसरली किसी को दिखावान करने के लिए ये सब दिखाते नहीं है। जो भगवान को वो अपना अपना कर चुके हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमको बताना चाहिए। एक शुद्ध भक्त जब भगवान को अपना कर चुके हैं, जब भगवान का दास होके वो भगवान उसका दास बन जाते हैं, तो फिर उसको ये मिस्टिक पावर या दिखाने के लिए जो है इसको देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्योर डिवोटी इज मोर इंटरेस्टेड इन सर्विंग द लॉर्ड देन शोइंग एन एग्जीबिशन ऑफ द मिस्टिक पावर्स डोमिनेंट इन हिम। तो श्री नारद हैज एक्सप्लेन्ड ऑल दिस फ्रॉम दिस पर्सनल एक्सपीरियंस। देखिए नारद मुनि को कितना मिस्टिक पावर है। तो कोई ऐसा है इस एक शरीर में वो जहाज था, मेटल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ धाम, कहीं पे गोलोक वृंदावन, कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। सबसे अपना बीणा वादन करते हुए नारद मुनि पहुंच जाते हैं। राधिका रमन बोलते हैं, गाने गाते हैं। तो ये कृष्ण भी वो बीणा उनको दिए थे। तो ये इनका पावर है, कहीं पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से अभी ये मेटल वर्ल्ड में है, कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, तो इनका ये पावर मिला है। तो इसी पावर को क्या करते हैं, वो किसी को शो करने के लिए नहीं है, उस पावर को यूज करते हैं भगवान का सेवा करने के लिए। तो इसीलिए हर जगह में जाते हैं, भगवान का नाम को प्रचार करते हैं, बीणा वादन करते हैं, भगवान का नाम सबको श्रवण कराते हैं, नाम रूप गुण लीला, इसे भगवान का सब लीला को
ये कराते हैं। तो इनका काम यही है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, इनको वो यूज़ नहीं करते मिस्टिक पावर को। तो अगर सबको ही अगर पैसा मिस्टिक पावर का माध्यम में लोग पैसा दिखा देते हैं, पैसा आ गया। अच्छा तो पैसा आ गया तो मैजिक क्यों बार-बार कर रहा है? वो तो एक ही बार में सारा पैसा कमा लेता है और उसके बाद में अपना आराम से रहता है। लेकिन वो मैजिक करके अपना जो गुज़ारा क्यों करता है? तो दैट मीन्स वो टेम्परेरी है और इल्यूज़री है, वो सब कुछ फ़ायदा का नहीं है। हैं? कभी-कभी हम लोग भी सोचते हैं, एक आदमी ऑटो चलाता है, दिन में बहुत सारा पैसा भी कमाता है। एक आदमी कसाई खाना में कसाई बैठ बैठ के मांस, मछली ये बेच रहा है। लेकिन हम लोग देखते रहते हैं कि ज़िंदगी भर अगर उसी आदमी वही जगह में बैठ के उसी चीज़ कर रहा है और उतना पैसा कमा सकता है, कमा भी रहा है, बोलते हैं कि बहुत पैसा कमाते हैं। ऑटो वाला भी बहुत पैसा कमाता है, टैक्सी वाला भी बहुत कमाता है। हम श्रीलंका गए थे, एक टैक्सी वाला का पूछे, तो कोई जाना था तो बोला हम लोग पूछे कि आप डेली कितना पैसा कमा लेते हो? तो बोला हमारा 20,000 श्रीलंकन रुपीज़। तो वो अप्रॉक्सिमेटली 1/3 है यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में, तो 8,000 करीब होगा, 7,000 करीब है। तो एक दिन में अगर 7,000 ठीक है, उसमें भी अगर उसका कोई गैस या फ्यूल डालेगा, दिन भर में भी माइनस कर दो ₹2,000 इंडियन रुपीज़ माइनस करने से ₹5,000 कमा इट अगर है और उसका गाड़ी का भी खर्चा भी माइनस कर दिए 1000 माइनस करो तो 4000 रखा है तो 7,000 से 4000 हो गया ठीक है 4000 इंटू 30 तो 1,20,000 तो हर महीने में 1,20,000 कमा रहा है तो ठीक है उसका खुद खर्च पर भी जाएगा तो कितना जाएगा इंडियन रुपीज में 1,20,000 माइनस भी कर दो 40,000 30,000 40,000 ₹80,000 हो सकता है उसको बचाना बच जाता है ₹80,000 अगर बचेगा महीना में तो ठीक है 10 लाख तो उसका बच के रहना चाहिए लेकिन फिर वो क्यों टैक्सी चलाता है या रियली क्या वो धनी हो गया है क्या तो ये एक एक क्वेश्चन मन में आता है कभी आप भी सोच लीजिए कि कैसा है तो इसका मतलब बहुत लोग बहुत पैसा भी डिफरेंट लेवल में कमा लेते हैं करके डिफरेंट अनथाइज वे में कमा लेते हैं कमा के इसको इतना पैसा रहता है फिर वो क्या करता है उस पैसा से क्या कर पाता है वो पैसा पैसा बैंक में रहता है या कहीं पे रहता है बहुत जगह में ऐसे भी रहता है वो पैसा किसी का पास में किसी का नाम में है बाद में जरूरत पड़ने से वो आदमी उसको पैसा भी नहीं देता है वो बहुत लोग उसमें जमीन ऐसे दूसरा का नाम में खरीद लिया है बहुत प्लॉट्स लेकिन ऐसे समय आता है वो जानता है इसको क्लेम नहीं कर सकता है तो उसका जान पहचान क्लोज होगा उसका नाम है जमीन खरीद लिया लेकिन बाद में वो आदमी उसको देता नहीं बहुत सारा एग्जाम्पल है तो उसका मतलब आप इतना जो अनऑथराइज्ड वे में किया उसका क्या हुआ वो आपका रहा नहीं तो इसका मतलब जो है जिसका जितना ड्यू है मटेरियल वर्ल्ड में जिसको जितना सुख मिलना है जिसको जितना कमाई होना है और मेटल वर्ल्ड में जिसको जितना पढ़ाई करना है मेटल वर्ल्ड में जिसको जितना कैसे जन्म लिया है और कैसे मृत्यु होगा ये 5 चीज फिक्स्ड है तो फिर फिक्स्ड है तो फिर क्या कौन चेंज कर सकता है नहीं कर सकता है भक्ति करने से ये सब सारे चेंज हो सकता है हमारा नेक्स्ट बार्थ कैसे होगा वो भक्ति करने से भी हम चेंज कर सकते हैं हमारा मृत्यु कब होगा टाल नहीं सकते हैं अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है इस टाइम में मृत्यु होना है जनरली फिक्स्ड लोग सोचते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से है डेट ऑफ डेथ भी डीओडी वो भी लिखा हुआ है वो पता नहीं हम लोग को एनवलप में रखा गया है सील्ड एनवलप वो खुला नहीं है इसलिए पता नहीं है लेकिन वो डेट ऑफ डेथ को भी एक आदमी चेंज कर सकता है वो है कृष्ण का शुद्ध भक्त है तो सिमिलरली कितना पैसा कमाई होगा उसका भी फिक्स्ड है लेकिन कितना विद्या ग्रहण करेगा मेटेरियल एजुकेशन वो भी फिक्स्ड है कहाँ तक जाएगा क्या पढ़ाई कर सकता है वो फिक्स्ड है लेकिन भक्ति करने से वो सारे चीज को चेंज कर सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं तो इसीलिए भक्ति का माध्यम में सारे चीज को खत्म कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं हाँ पाप को खत्म कर सकते हैं हमारा जितना पाप है उसका जीरो कर सकते हैं उसको पाप का मूलोत्पाटन कर सकते हैं मतलब जैसे जड़ से उखाड़ सकते हैं भक्ति से तो निहारा एवं भास्कर जैसे बोलते हैं भास्कर आने से सूर्य आने से जैसे ये चला जाता है निहार मीन से कोहड़ी जो कुआंसा है हम लोग बोलते हैं तो वो चला जाता है भगवान इसीलिए भक्ति करने से भगवान हमारे लाइफ में प्रेजेंट होने से सारे पाप खत्म हो जाता है कर सकते हैं जब दीक्षा लेते हैं मालूम है उस टाइम में सारे प्रीवियस बात का जितना पाप है खत्म हो जाता है वो प्यूरिफाई करते हैं दीक्षा के समय में
लेकिन फिर हमको पाप नहीं करने के लिए बोला जाता है, लेकिन हम लोग उसको कर देते हैं। इसके चलते हमारा फिर पाप आ जाता है। अदरवाइज़ जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के समय में सारे प्रीवियस बर्थ का अभी तक का सारे पाप खत्म हो ही जाता है और इसको हम लोग फिर मतलब दीक्षा आसान ऐसे लोग बोलते हैं, दीक्षा को ऑर्डिनरी सोचते हैं हम लोग। दीक्षा लेने के बाद में भी बहुत लोग, कुछ लोग आजकल ऐसा भी है, हम लोग कुछ लगे हम भी उसी कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन हम लोग पूरा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना है। ये सब कंप्लीटली करना चाहिए। लेकिन हो सकता है बहुत लोग हम लोग कर लेते हैं, कुछ भक्त करते हैं, कुछ लोग नहीं करते और तो कुछ ग्रॉस वायलेशन भी करते हैं। कुछ तो लोग है मैंने जब इवन ये भक्ति का आने के बाद में, इनिशिएशन के बाद में भी हम लोग देखते हैं कोई एकादशी नहीं कर रहा है। उस मतलब भक्ति माने ये इनिशिएशन क्या है, मतलब इस टाइप का फार्स तो नहीं है, लेकिन लोग उसको फार्स बना रहे हैं। तो हम लोग उसका देखना है। उसके बाद में कोई होगा एकादशी का मैंने अगर कर भी लगा, 16 माला नहीं करेगा। 16 माला आज नहीं, प्रभु जी काल को रखेंगे 4 ठो माला। अच्छा 4 माला ऐसे बोला गया है। अब अगर आप बेड रिडन हो गया और आपको कॉन्शसनेस नहीं है तो चैंटिंग उस दिन का पता नहीं, छोड़ो। अदरवाइज जब आप कॉन्शस में है और बेड रिडन मतलब अवस्था में चैंटिंग करने का अवस्था में है तो चैंटिंग कंप्लीट करना है। तो हम लोग इसलिए जो भक्त किसी को दीक्षा में हेल्प करते हैं, लोग ला के पहुंचाते हैं भगवान का गुरुदेव का पादपद में, वो लोग बहुत रिस्क लेते हैं और गुरुदेव भी बहुत रिस्क लेते हैं, क्योंकि उसका जो पाप है आफ्टर दीक्षा ये पता आना चाहिए। 1/6 पाप जो हम करेंगे उसका पाप गुरुदेव का पास में जाएगा। जितना पाप हम करते हैं उसका 1/6 गुरुदेव का पास में जाता है। मतलब हम गुरुदेव एक बहुत युद्ध इसलिए क्या है ना, वशिष्ठ लीला में प्रवेश करते हैं बहुत। वो तो शुद्ध भक्त है, उसको इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो दिखवाने के लिए लोगों को भी होता है कि बहुत सारा महाराज ने कुछ कुछ है तो वशिष्ठ लीला में प्रवेश करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस वन ऑफ द रीजन इज दैट जो डिसाइपल्स है वो जो है पाप करते हैं, उसका जो पाप का भाग उधर जाता है। लेकिन उनका पावर, उनका ये तो कैपेबिलिटी है कि भगवान उनको शुद्ध भक्त को हेल्प करते हैं, वो अलग बात है। बट इसका मतलब नहीं कि हम लाइसेंस टू डू दिस पाप, ऐसे नहीं है। जैसे शादी हमारा टीचर बोलते लाइसेंस टू हैव सेक्स, तो ऐसा नहीं है। तो हम लोग इसको दीक्षा को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। तो कल भी परसों हम तो आ रहे थे, जिस दिन हमको भी बहुत अच्छा लगा है कोई डिस्कशन, हम तो हमारा कंसेप्शन थोड़ा गलत, थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा चेंज हो गया ज्यादा। हम लोग एक वर्ड जानते थे गुरु भोगी या कृष्ण भोगी, इसको नोट करिए सब। कृष्ण भोगी और गुरु भोगी। अच्छा गुरु भोगी कृष्ण भोगी कौन है? हम जब से दीक्षा ले लिया गुरुदेव का हुआ, हमारा सारे प्रॉपर्टी किसका है, ये शरीर किसका है, गुरुदेव का है। मतलब कृष्ण का है ही है। अच्युत गोत्र में हम जोड़ गया, भगवान का गोत्र में आ गया, गुरुदेव ने हमको जोड़ दिया। अभी हमको कोई पूछेगा दीक्षा का बाद में तो हमारा गोत्र क्या हुआ, हमारा गोत्र भगवान का गोत्र के साथ में समान हो गया। दैट इज कॉल्ड अच्युत गोत्र। शादी के बाद में जैसे वाइफ का गोत्र चेंज होके हस्बैंड का गोत्र होता है, तो ये इसलिए हम भगवान का फैमिली में आ गया। लेकिन गोत्र भगवान का हो गया, लेकिन काम किसका करता है, सेवा किसका करता है, माया का, मतलब या दूसरा का। मतलब इसमें क्या है, इसको बोलते हैं गुरु भोगी या कृष्ण भोगी। हम तो पहले से थोड़ा दूसरा थोड़ा माइनर कॉन्सेप्ट था कि ठीक है ये सिंसियरली करना चाहिए भक्ति, ये सब है, अगर ये गुरुदेव का बात से चलना चाहिए। लेकिन ऐसे है कि सारे चीज तो भगवान का है। तो अभी जो हम इनकम कर रहे हैं वो इनकम किसका है, गुरुदेव का है। तो हम लोग इनकम क्या 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 करते हैं, अपना सेवा में लगाते हैं, दूसरा का सेवा लगाते हैं, मतलब गुरु भोगी हो गया। गुरु का प्रॉपर्टी है और उसको हम एंजॉय कर रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं लगाते। शरीर किसका है, गुरुदेव का है। इसलिए बोलते दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। अगर ये वर्ड तो समझ आ गए हैं और मनन करना पड़ेगा। जो क्या है ना, हम दीक्षा काल में हम शिष्य आत्मसमर्पण करता है किसका पर में, तो दीक्षा काल है गुरुदेव का पास में, उसको कृष्ण का साथ में वो आत्मसमर्पण होता है। तो सही काल है कृष्ण करे तारे आत्मसम, अपना जैसे बनता है, बना अपना हो गया जैसे, डिफरेंट नहीं है। अगर जो कोई सिंसियरली पूरा होल हार्टेडली फुल्ली भगवान के कृष्ण का सेवा करेगा, बोला जाता है कि उसका शरीर में खरोच भी नहीं आ सकता है, एक खरोच नहीं आ सकता है, अगर थोड़ा सा भी चोट नहीं लग सकता है। अगर चोट लगा तो कृष्ण का शरीर में चोट लगेगा। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप देखिए शिला हरदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेसेस में उसको वैद्य का प्रहार करने के लिए
कैन बीटिंग, हाँ, बेत प्रहार करने के लिए पनिशमेंट मिला था उसको। काजी ने ऑर्डर दिया था उनका जो लोग को जाके उसको डिफरेंट प्लेसेस में, मार्केट प्लेसेस में, 22 मार्केट प्लेसेस में लेके उसको बेत प्रहार कर सबका सामने में बेत प्रहार कर, उनका कुछ नहीं हुआ। इतना भी पिटाई करते करते वो थक गए और वो लास्टली जो पिटाई करने वाले सब थे वो बोले क्या आदमी आप है, तो आप थोड़ा सा हमारे लिए कृपा करिए कि हम, अगर मेरा बॉस हमको भेजा है पिटाई करने के लिए, आप कुछ नहीं हो रहा है तो फिर हमको तो नौकरी जाएगा। तो इसीलिए वो ही बिहेव एज अनकॉन्शियस हो गया बोल के, और उनको वो बोला मर गया बोल के करके गंगा में उनको भसा दिया। ओके, बट वो गंगा में भस के दूसरे जगह में उठ गए तो इसीलिए, तो लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ था। तो जब उनका ऊपर में बेत का प्रहार होता था, वो प्रहार कहाँ पहुंचता था मालूम है? वो जाके चैतन्य महाप्रभु का पीठ में जाके प्रहार पड़ता था। चैतन्य महाप्रभु का जो है, क्योंकि वो उनसे सरेंडर थे तो उनका शरीर से ब्लड निकलता था। यहाँ पिटाई होता है, उनका शरीर से ब्लड निकल रहा है। जैसे आप और दूसरा एक स्टोरी भी सुने होंगे, वहीं पर उस दिन भी क्लास में बोल रहे थे। तो एक आदमी का बोला, कोई शुद्ध साधु आया तो बोला तुम हरिनाम करो, राम नाम करो। तो बोला मेरे पास में राम नाम करने का टाइम भी नहीं है। तो साधु बहुत कृपालु है, इसलिए बोला ठीक है, फिर भी सोचो कब टाइम हो सकता है। तो बोला मेरा टाइम जो है बाथरूम में जितना समय बैठता हूँ उसी टाइम में होता है, वो इस पे टाइम है। तो कोई बात नहीं, तुम बाथरूम में बैठो और उसी टाइम में बाथरूम में ही तुम राम नाम करो। तो उसी टाइम में वो बाथरूम में राम नाम करता है, बहुत जोर से करता था। उसी रास्ते में एक दिन हनुमान जी जा रहे थे, तो हनुमान जी सुने कि ये राम नाम कौन कर रहा है बाथरूम में। वो वर्ड किए, जब वो बाथरूम से निकला उसको लगाया, जोर से एक थप्पड़ लगाया उसका। तो, तो बोलता है क्या है, तुम क्या राम नाम ऐसे कर रहे हो क्या, बाथरूम में राम नाम कर रहे हो? अगर तो मालूम नहीं है भगवान का नाम ये गंदा जगह में करते हो? थप्पड़ लगाया। उसका बाद में जाके वो राम जी के पास में जब पहुंचते हैं, सीता माँ राम जी के पास में पहुंचे तो उस टाइम में राम जी का ऐसे ही सीता माँ ये कर रहे हैं, उनका थोड़ा सेवा कर रहे हैं। वो देखा हनुमान जी, बोला कि प्रभु का क्या शरीर, क्या कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ हाँ, वो तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो फिर क्या गड़बड़ है, तो ना आप जाके खुद पूछो, भगवान से पूछ लो। तो हनुमान जी जाए, प्रणाम किए, फिर राम जी के पास में फिर पूछे प्रभु जी, वो आपका इस टाइप का क्या है, आपका शरीर में क्या कोई कुछ कर दिया क्या, क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर कोई इस टाइप का किया होगा तो बताइए, हम उसको जो करना है कर लेंगे। आप जानते हैं मैं क्या करना है करूंगा, उसका ढोल बजाऊंगा। तो नहीं नहीं, वो छोड़ो भगवान, उसका बात छोड़ो, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कैसे छोड़ेंगे? आपका अगर इस टाइप का हालत कोई किया होगा तो उसको तो हम तो छोड़ नहीं सकते। तो कृपा करके बताइए वो कौन किया है। ऐसे 2-3 बार, बहुत बार पूछने के बाद में राम जी बोले अरे छोड़ो यार, उसको नहीं बताना है कौन किया क्या किया, हम ठीक है। नहीं 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 नहीं, आप ठीक नहीं है, आप बताइए। तो इतना इंसिस्ट करने के बाद में राम जी बताया क्या बोलूं, वो ये जो हालत है ना तुम ही किया मेरा। तो कैसे, मैं क्या किया? तो राम जी बोले अरे यार देखो हनुमान, वहां पे हमारा एक भक्त है जो भी है, वो हमारा नाम ले रहा है, बाथरूम में ले रहा था, तुम उसको पिटाई किया। और नाम नाम किसका ले रहा है? मेरा। तो नाम मेरे से अभिन्न होते हैं, भगवान से नाम भगवान से अभिन्न है। तो उसको पिटाई किया तो उसका जो फल आके मेरा, जहां तुम पिटाई किया मेरा आके वो ये हुआ है, तो ये सब फट गया है देखो, है। तो तब हनुमान जी को समझ में आया, प्रभु मेरा गलती हो गया है, तो अभी कभी नहीं करेंगे। इसलिए नाम, राम का नाम अभिन्न होता है राम से। इसीलिए तो जब सेतु बंद हुआ तो हनुमान वगैरह जितना भी थे, तो उसका ऊपर में हर पत्थर का ऊपर में राम का नाम लिखा। तो उसका बाद में उसको पानी में डाला तो उसको मन में भासमान रहा, फ्लोटिंग होता रहा। तो भगवान ने, राम ने जी भी ट्राई करने के लिए एक पत्थर को फेंक दिए समुद्र में, तो वो डूब गया। तो उसके बाद जो हनुमान जी को, हनुमान वगैरह थे, पूछे अरे तुम लोग जो पत्थर फेंकते हो, वो पत्थर कैसे भासमान रहता है? मैं फेंक दिया वो पत्थर को, वो पानी में डूब गया। तो देन वो लोग बताया कि देखिए, और पत्थर में हम लोग आपका नाम, राम का नाम लिखते हैं, आपका नाम लिखा है,
इसीलिए वो ये फ्लोटिंग रहता है। तो आप जो फेंका उसमें आपका नाम नहीं लिखा है, तो इसीलिए वो डूब गया। तो इसलिए भगवान का नाम से इम्पोर्टेंट है, भगवान से उनका नाम बहुत समान है। इट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये बात जो है साउंड रिप्रेजेंटेशन इसे नो जो वो बात करते हैं, ऐसे नारद मुनि ऑब्टेन्ड बाय परफेक्टली चैंटिंग प्रोसेस ऑफ साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड। तो सिर्फ राधिका रमन करते करते वो परफेक्शन उनका हो जाता है। तो देयर इज नो बार ऑफ फॉर चैंटिंग द ट्रांसलेशन साउंड बाय एनीवन प्रोवाइडेड इट इज रिसीव्ड थ्रू द एनीवन एनी प्लेस एनी टाइम, नॉट खाली एनीवन। तो और दूसरा में बता दिया है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्राभित नियमित स्मरण नाकाल एतादृशी तो कृपा भगवान मम आपकी दुर्दैव मिदृशम यह जानी नानु राग। हमारा ये कंडीशन है, ये नाम लेने का समय कोई नहीं है, कहीं पे भी कभी भी किस काल में ले सकता है, किसी समय में किसी अवस्था में, लेकिन हमारा टेस्ट ही नहीं आ रहा है इसके लिए। तो इसीलिए ये नाम और नाम में अभिन्न होते हैं। There is no bar in chanting for chanting the sound by anyone provided it is received through Narad representative। तो नारद या गुरुदेव या नारद का रिप्रेजेंटेटिव, नारद मुनि का रिप्रेजेंटेटिव का थ्रो में आता है, डिसाइपल सक्सेस में आता है, कमिंग डाउन बाय द चेन ऑफ डिसाइपल सक्सेशन एज द परम और द परंपरा सिस्टम। तो आज हम लोग जो डिस्कस अभी किए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीखने के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? हम लोग गुरु भोगी नहीं बनना है, एटलीस्ट ट्राई करना पड़ेगा मैक्सिमाइज करने के लिए। ये सारे संपत्ति काय मन भक्ति गुरुदेव का है, तो इसको हम लोग सोचते नहीं है। तो ये सोचना है खाली नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इसीलिए एक भक्त थे, वो भी गृहस्थ थे, तो वो प्रभुपाद का पास में या कोई उनका गुरुदेव का पास में जो भी है, वो जाते थे, सैलरी पूरा मिलता था, महीना का पूरा सैलरी लेके दे देते उनका पास में। क्यों? क्योंकि हम तो शरीर से खटा, जो काम किया मन लगा के जो भी किया, उसका रिजल्ट क्या, आउटपुट क्या है, पूरा महीना का सैलरी, तो पूरा चीज लेके उनको दे देते हैं। फिर गुरुदेव ने दूसरा भक्त का माध्यम पूछते हैं, उसको पूछते हैं ये भक्त का क्या है, मंथली एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्या क्या होता है बताए। तो बोलता है इसका एक्सपेंडिचर है एक्स। तो देन गुरुदेव फिर बुला के उसको एक्स अमाउंट देते थे। और जब भाई तुम्हारा शरीर का मेंटेनेंस के लिए, तुम्हारा फैमिली मेंटेनेंस के लिए एक्स अमाउंट ले जाओ, तो वो दिए सपोज 10x, तो वो रिटर्न किए एक्स उसके एक्सपेंडिचर के हिसाब से, क्योंकि गुरुदेव उसको शरीर को मेंटेन करने के लिए जो चाहिए वो देंगे। तो दैट इज द वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वी मे नॉट एबल टू थिंक ऑफ। हम लोग सोच नहीं सकते हैं, लेकिन वही होना चाहिए। एग्जाम्पल जो है ना, लोग कुछ सेट किया है, तो दैट इज एग्जाम्पल, बट हम तो वो तो नहीं करते हैं। फिर हम 150% तो भी नहीं देते हैं, छोड़िए, बोलते क्यों टाइम तो नहीं, हम सिचुएशन नहीं दे सकते। 10% भी नहीं देते हम लोग। 10% क्या, 5% भी भगवान के लिए देते नहीं, तो गुरुदेव को देते हैं, जो दीक्षा भिक्षा नहीं देते। तो हम लोग तो ये किसको क्या बोलेंगे, गुरु भोगी कृष्ण भोगी। शरीर अभी किसका है, गुरुदेव का। हम क्या कर रहे हैं, अपना एंजॉयमेंट। हमारा जो हम जो इनकम कर रहे हैं किसका है, गुरुदेव का। वो कौन एंजॉय कर रहा है, हम, हमारा फैमिली। गुरु भोगी, इसको बोलते गुरु भोगी कृष्ण भोगी। शरीर हो मन है शुरू से कृष्ण का है। अभी तो दीक्षा का बाद में हो गया है तो अलग बात है, ऑफिशियली कनेक्ट हो गया। वही मैं कल सोच रहा था उस दिन, भाई तो ऑफिशियली अभी कनेक्ट हुआ, और शुरू से तो कृष्ण का है। जब हम मातृगर्भ में थे, बहुत कष्ट में थे, तो प्रभु को प्रार्थना किया था, प्रभु हाँ अभी हमको इतना कष्ट मत दीजिए, हम निकलते हुए ही आपका सेवा ही करेंगे। लेकिन हम निकलते ही हुए ही माया में फंस जाते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज क्या बोला, मेरे को नहीं चाहिए ध्रुव प्लानेट, क्योंकि यहाँ पे जाएगा शायद माया में फंस जाएगा। नहीं, नो, आई एम गारंटी। भगवान बोला तुम वहां जाएगा तब भी भक्ति करेगा। सुखदेव गोस्वामी क्या हुआ, सेम हुआ, मातृगर्भ से निकला नहीं। क्यों बाहर निकला, 16 साल या 12 साल जो अंदर में रह गया। कोई पे 12 बोलते, कोई 16 बोलते, बट एनीवे, तो इतना अंदर दिन रह गया। क्यों बाहर जाएगा, माया में फंस जाएगा। पिताजी बोला आ जाओ बेटा, मतलब मम्मी को इतना कष्ट हो रहा है, तुम घर में इतना दिन से बड़ा हो गया, आ जाओ। नहीं आएंगे, माया में फंस जाएंगे। आ गया अंदर में कोई बात नहीं, लेकिन बाहर बाहर तो बिल्कुल प्रॉब्लम है, अंदर में बेटर है। तो बोल रहा है नहीं नहीं, तो माँ के लिए सोचो थोड़ा सा। नहीं नहीं, मेरे को गारंटी चाहिए कि बाहर आएगा तो माया में फंसेगा नहीं। तो मैं गारंटी देता हूँ। कौन, सुखदेव गोस्वामी का पिताजी, वो तो भगवान का शक्ति वैसा होता है, वो गारंटी देते हैं। तो नहीं, आपका गारंटी से नहीं होगा। भगवान को बोला, भगवान कृष्ण आके गारंटी देंगे तब तो हम निकलेंगे। तो फिर वो गए,
कृष्ण उस टाइम में थे, द्वारका में थे, तो द्वारका गए और उनको बुला के लाए। तो आप कृपा करके आइए और थोड़ा सा बोलिए, आप बोलने से वो बाहर में आएगा। उसका बाद में कृष्ण बोले बेटा बाहर निकलो, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं तो माया का इंचार्ज हूँ, तो कोई प्रॉब्लम है, माया मेरा अंडर में है, मैं उसको ऑर्डर दे देता हूँ, तो तुम माया में फंसेगा नहीं। तो जब वो निकले तभी तुरंत वहां पे नहीं रहे, वही जो है कपड़ा कपड़ा कुछ नहीं है, अवधूत जैसे भागते गए, और उसके बाद भी पिताजी उसके पीछे भागे भागे रहे, वो पुत्र 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 बोल के बुला रहे हैं जंगल में, वो दुख करके बुला रहे हैं, लेकिन वो भाग के जा रहे हैं, और उसका रिफ्लेक्शंस में ट्री लोग बने, पेड़ वगैरह उसका रिफ्लेक्शन में वो पुत्र पुत्र चारों तरफ पे रिफ्लेक्शन होता था। तो यही है, इसे इसका श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट भी श्लोक वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो माया ऐसे ही अलग अंदर में है ही है, और बुला बुला के माया में आते हैं, और स्पेशली तो सरेंडर टुवर्ड्स गुरु, हम लोग कृष्ण का तो है ही है शुरू से, अदरवाइज ऑल्सो गुरुदेव के साथ ऑफिशियली कनेक्ट हुआ, तो ये सारे सारे चीज गुरुदेव का है, लेकिन प्रैक्टिकली तो करते नहीं, हम लोग कर नहीं पाते हैं। एटलीस्ट मैक्सिमाइज करना है, और जिंदगी का लास्ट फेज में अगर एटलीस्ट सारे चीज हम भगवान के लिए अर्पण कर पाए, सारे चीज हमारा कर्म कर्म का फल सारे को तन मन धन जो भी रिसोर्सेस है, तो उनका सारे को अर्पण करना है। ये हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो सारे तुम्हारा है, तो तुमको मैं क्या अर्पण करूं करके रह जाते हैं, मतलब तो ये उल्टा प्रोसेस है। अरे तुम्हारा तो सभी है, हम क्या करें, हम क्या अर्पण, लेकिन तेरा तुझको अर्पण, तो ये वाला आता है उसमें, तेरा तुझको अर्पण करें, तो उसमें भक्ति ऐड करके अर्पण करें, तो एवरीथिंग इज प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा, तो उसको अर्पण करना, उसमें थोड़ा सा जैसे एक सब्जी में कॉमन चीज है जो टेस्ट बढ़ाता है, दैट इज व्हाट, सॉल्ट। बिना सॉल्ट में जितना भी सब्जी बना लो उतना टेस्ट नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें सारे चीज जितना है उसमें सॉल्ट जो है भक्ति, तो भक्ति ऐड करेगा तब तो भगवान ग्रहण करेगा, नहीं तो ग्रहण नहीं करता है। तो उसको इसीलिए यहाँ पे नारद मुनि कैसे देखिए कैसे प्रोवाइडेड सर, नारद ऋषि थ्रू नारद डिपेंडेंट कमिंग डाउन बाय द चेन ऑफ डिसाइप्लिसेशन और द परंपरा सिस्टम। तो नारद मुनि का सब समय काम था भगवान का सेवा करना, तो 24 आवर्स सब समय उसको, तो उनको भी फैसिलिटी मिला था, कहीं से कहीं जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, हाँ गोलोक वृंदावन भी जा सकते हैं, मेटल वर्ल्ड आ सकते हैं, लेकिन उनका काम वहीं पे जाते थे और सेवा करते, लेकिन प्रीवियस बात में क्या थे दासी पुत्र, तो वहां पे कैसे हुआ, भाई भक्ति वेदांत का आशीर्वाद से तो नारद बन गए। तो ये नारद मुनि को मतलब प्रणाम करना है। देन लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर टुडे, त्वमपि अदभ्र श्रुत विश्रुतं विभो सम्पायते येन वेदं बुभुषितं प्राख्याहि दुःखैर्मुहुर् अर्दितात्मनः संक्लेश निर्वाणं पुषन्ति नान्यथा नान्यथा। Translation: Please therefore describe the Almighty Lord's activities in the question जो था, which you have learned by your vast knowledge of the Vedas, or that will satisfy the hankerings of the great learned men, and at the same time mitigate the miseries of the masses of common people who are always suffering from the material pangs. Indeed, there is no other way to get out of such miseries. Sri Narada Muni from practical experience definitely asserts that the prime solution of all problems of material work is to broadcast very widely the transcendental glories of the Supreme Lord. So ये practical चीज क्या है? Practical experience है definitely asserts that the prime solution मेटेरियल वर्क का, मेटेरियल वर्ल्ड में जितना प्रॉब्लम है उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, प्रभुपाद यहाँ पे एक लाइन में दिया है, क्या ब्रॉडकास्ट वेरी वाइडली द ट्रांसनल ग्लोरी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, जो बार बार वही बोला जाए भगवान का जो ग्लोरी है, भगवान का यश है, उसको ब्रॉडकास्ट करना है, उसको चारों तरफ में फैलाना है, तभी मेटेरियल वर्ल्ड का सारे प्रॉब्लम खत्म होगा। बिकॉज लोगों का पास में स्पिरिचुअल भगवान पहुंचेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज जहाँ भगवान रहेंगे वहां माया का अधिकार नहीं है, वहां पे सारी चीज ठीक हो जाएगा। There are 4 classes of good men and there are 4 classes of bad men also. 4
The four classes of good men acknowledge the authority of the Almighty God, and therefore such good men कौन है? सुकृतिवान। चार प्रकार सुकृतिवान व्यक्ति गीता में भगवान बोले 7 अध्याय में, तो वो भगवान का पास में सरेंडर करते हैं। Either earthy when they are difficulty, when they are need of money, earthy when they are advanced in knowledge, ज्ञानी, or when they are inquisitive to know more and more about God, जिज्ञासु, intuitively take shelter of the Lord. As such, Naradji advises Vyasadeva to broadcast the transcendental knowledge of God in terms of vast Vedic knowledge which he had already attained. इसलिए क्यों नारद ने बोला, नारद ने आए हैं व्यासदेव का, व्यासदेव से बोले इतना लिख दिया 5,08,000 श्लोक लिख दिया, कुछ नहीं हो रहा है। 5,07,000 श्लोक लिखा, कुछ नहीं हो रहा है। तो 18,000। तो ये बोला, अरे तुम एक काम करो, तुम्हारा पास में सारे नॉलेज है भगवान का, लेकिन उसको पूरा बहुत अच्छा से ग्लोरीफाई नहीं किया, उसमें थोड़ा थोड़ा कम कम किया। उससे पहले जो लिखा वेद में, वहां पे कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब रहा ज्यादा। ये 2% उपासना कांड में ही आप लोग 100 से 2% में आप ग्लोरीफाई किया, लेकिन अभी 100% ग्लोरीफाई करो। तो इसीलिए भागवतम लिखना है, तो कंपाइल करना है। एज फार एज द बेड मैन आर कंसर्न्ड, तो चार प्रकार व्यक्ति धर्म को ग्रहण करते हैं, पास में जाते हैं, अर्थी, अर्थात ज्ञानी, जिज्ञासु। एंड चार नहीं करते, दे आर simply addicted to the mode of progressive fruitive work, and thus they subject to accompany miseries. गधा जैसे गधा जैसे खटता रहेगा, मूढ़ा इसको बोलते हैं, for the day. And those who are simply addicted to vicious works of sense gratification and should suffer the consequences. तो चार प्रकार व्यक्ति कौन है? मूढ़ा, नराधमा, माया ज्ञानम एवं आश्रित। तो थर्ड में those who are materially very much advanced in knowledge, तो माया उपरत ज्ञान, जिसका ज्ञान है माया द्वारा अपहरण हो गया। इस माया में से ये जो मेटेरियल नॉलेज, जड़ विद्या जो तो माया वैभव जीवे के करे गाधा, तो माया का वैभव है जो मेटेरियल नॉलेज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जीव को गाधा बनाता है। ये माया का वैभव है, माया जड़ विद्या जो तो माया वैभव, तो इसलिए माया अपरत ज्ञानम, माया का द्वारा हमारा जो मेटेरियल नॉलेज का द्वारा हम ज्ञान, रियल ज्ञान अपहरण हो गया, भगवान को भूल गया, इसीलिए भगवान इसके बारे में नहीं पता है। But who suffer because they don't have the sense to acknowledge the authority of the Almighty of the Lord, Almighty Lord. And fourth class, the class of men who are known as atheists and who therefore purposely hate the very name of God, although they are always in difficulty. सब समय डिफिकल्टी में है हिरण्यकशिपु, तो फिर भी वो भगवान का नाम उच्चारण नहीं करेगा। वो विष्णु को कहाँ ढूंढो मारेगा, जाकर 4,000 में ढूंढा, कोई पे नहीं मिला। विष्णु तो छुप गया उनका हृदय का अंदर में, तो उसको क्या मारेगा। So Sri Narada ji advised Vyasdev to describe the glories of the Lord just to do good to all 8 classes of men, जो ग्रहण करता है नहीं करता है, सबके लिए ये ग्लोरिफिकेशन करो। नारद मुनि को व्यासदेव बोला, नारद जी एडवाइस किया व्यासदेव को, both good and bad. Srimad Bhagavatam is therefore not meant for any particular class of men or sect. It is for the sincere soul who actually wants his own welfare and peace of mind. श्रील प्रभुपाद का जो है लास्ट लाइन, ये एकदम छक्का लाइन है, मतलब इसको क्या बोले, माने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं। इट इज फॉर द सिंसियर सोल, जो सिंसियर है, वो एक्चुअली वांट्स हिज ओन वेलफेयर, हमारा अपना वेलफेयर चाहिए, कोई चाहता है ना नहीं, अपना को कैसे ठीक रखना है, वेलफेयर चाहिए, मेरा कैसे मंगल होगा और पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा, ये इसको सबको चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा। इसीलिए ये भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन करेगा, और उसने अपना का मंगल है, अपना मन का शांति है, अपना सब मंगल होगा और दूसरा का भी मंगल होगा। इसीलिए दास भक्तिवेदांत purport of the first canto, 5th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled Narada instruction on Srimad Bhagavatam for व्यासदेव। व्यासदेव को दे रहे हैं क्या, हमको दे रहे हैं। तो ये ग्लोरीफाई करो, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करो, एक्सक्लूसिव ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। नारद मुनि ने बताया व्यासदेव को, लिखो, ग्लोरीफाई करो भगवान का एक्सक्लूसिव, उसमें कुछ मिक्स नहीं, कोई मिक्स नहीं, कर्म ज्ञान ध्यान कुछ नहीं मिक्स,
हाँ, या आरती अर्थात ज्ञानी जी का ये सब मिक्स फिक्स कुछ नहीं चलेगा। शुद्ध भक्ति, ग्लोरिफिकेशन करो। शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्ति और भगवान, 3 जहाँ ये 3 चीज़ परमानेंट है। ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें 3 ही चीज़ परमानेंट है, 3 ओनली परमानेंट थिंग है, इटर्नल है। भगवान इटर्नल है, उनका भक्त इटर्नल होते हैं और उनका बीच में जो संपर्क है उसको बोलते हैं भक्ति, दैट इज इटर्नल। दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। भगवान का कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, भगवान का भक्त का भी कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। नामे भक्त प्रणश्यति, भक्त का कोई विनाश नहीं हो सकता है। भगवान ने बोला शुद्ध भक्त का, प्रहलाद महाराज विनाश नहीं है, ध्रुव विनाश नहीं है किसी का। तो इसीलिए उसका जो करते हैं भक्ति, ये 3 चीज परमानेंट। तो हम लोग को अगर इस वर्ल्ड से इस लाइफ में दूसरा लाइफ को जाना है, एक परमानेंट चीज लेकर जाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड भक्ति। तो भक्त बनो, भगवान का साथ में जोड़ो, तो बाय द मीडियम ऑफ भक्ति। तो हमारा जो है ये 3 भक्त, भक्ति, भगवान, ये 3 परमानेंट है, नोट डाउन इट। रेस्ट ऑफ थिंग्स आर नॉट परमानेंट। नन ऑफ अदर थिंग्स इज नॉट परमानेंट, इटर्नल नहीं है, वो टेम्पररी है। ओनली थिंग्स जो परमानेंट है, भगवान परमानेंट होते हैं, इटर्नल होते हैं, भक्त परमानेंट होते हैं, और उसका बीच में जो रिलेशनशिप है भक्ति, वही परमानेंट होता है। और सोल परमानेंट है, कोई बात नहीं, मतलब स्पिरिचुअल चीज है जो है वही स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल चीज ही परमानेंट है, मेटेरियल चीज ही टेम्पररी है। तो इसी को समझने के लिए भक्त, भक्ति, भगवान, ये 3 परमानेंट होता है। तो इसको इसलिए हम सोचना चाहिए मैं परमानेंट चीज क्या लेके जाऊंगा। तो हमारे प्रभु ने पहले दुर्गा देवी शिव जी का पूजा करते थे, शिव जी का, तो दुर्गा देवी उसमें तो ये पुरी का पास में एक जगह में एक बहुत प्रत्यक्ष देवी देवी थी, उसका जो पुजारी है उनका पास में बीच बीच में जाते थे, माँ के सेवा, वो बात करते थे। वो जो पुजारी है माँ से बात करते हैं डायरेक्टली, उनको बात करते थे वो। तो ये वहां पे जाते, उनका बोलते आंख मीट मीट होता है, आंख भी ऐसे से करते हैं, मतलब देवी का। तो वहां वहां तो जाते थे। उसके बाद में कुछ दिन जाने के बाद में फिर ये सबसे मांगते थे शिव जी को, दुर्गा देवी को, जब हाँ, प्रभु आप मेरे को एक चीज देना, मैं कोई चीज टेम्पररी चीज नहीं लूंगा, मेरे को आप कृपा करो कि मेरे को परमानेंट चीज चाहिए। अगर परमानेंट चीज आप देना है उसी को मैं लूंगा, और परमानेंट जो चीज आपको देना, मेरे को टेम्पररी चीज नहीं चाहिए। ये प्रभु जी का अपना ये लाइफ का पॉइंट है, रियलाइज वो बोल रहे थे। हम लोग परमानेंट चीज चाहिए, हम भगवान का पास में जाते हैं, परमानेंट चीज नहीं मांगते। अगर हमको दीजिए जो ख्याति हमारा दीजिए, पैसा दीजिए, तो नौकरी दीजिए, छोकरी दे देते हैं, बेकरी दीजिए, उसका में बेकारी है। तो ये सब मांग लेते हैं हम लोग। लेकिन नौ धनम नौ जनम नौ सुंदरी कविता बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति वही तुई। तो हम लोग उसको मांगते नहीं, औरत को भक्ति नहीं मांगते। प्रभु हमको धन जो, जन दो, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरे को सब लोग माने, मेरे को बहुत पैसा मिले, तो जन मिले, मेरे को बहुत लोग माने, मतलब फॉलो करते हैं। धन जन, नौ धन नौ जन नौ सुंदरी, मैं बढ़िया छोकरी चाहिए नहीं, हाँ वो सब है। तो उसका बाद में क्या, हाँ तो उसका बाद में बेकारी। तो इसलिए नौ धनम नौ जन सुंदरी, कविता, कविता मेटल एजुकेशन, पीएचडी, सो बड़ा बड़ा चीज। हाँ पीएचडी करना है अगर भगवान का सेवा के लिए करना है तो इसको लगाना है, नहीं तो फिर बोलेंगे पीएचडी छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं। तो भगवान का सेवा के लिए लगा सकते हैं तो करो। तो इसके लिए ये सुननी चाहिए। फिर मम जन्म नहीं, फिर मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। जन्म का बार में जन्म दो मतलब मुक्ति नहीं चाहिए। तो फिर 5 चीज मना कर दिया, धन जन सुंदरी कविता देन मोक्ष, ये 5 चीज मना कर दिया। तो क्या चाहिए आपको बताइए। अहेतु की भक्ति दीजिए, विदाउट एनी कॉज, जो भक्ति करना है, मेरे को कुछ पाने के लिए नहीं है। लेकिन हम लोग तो पहले सोचते हैं क्या मिलेगा तब हम करेगा। तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, पहले हमारा कैलकुलेशन अबाउट माई सेल्फ, क्या कैलकुलेशन यही रहता है। तो क्या हमको क्या मिलेगा उससे, हमको क्या उससे प्रॉफिट मिलेगा, क्या लॉस होगा, तब हम करेंगे। तो हम लोग भी कहीं पे भी जाते हैं तो वही सोचते हैं, भगवान का सेवा के लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा वहां से। प्रभु का पास में जाएगा कुछ मांगने के लिए, प्रभु मेरा प्रॉब्लम है थोड़ा सॉल्व कर दो, तब हम जाते हैं। तो इसीलिए ये सब शुद्ध भक्ति का पार्ट नहीं है, बट एनीवे ग्रेजुअली ग्रेजुअली इसको करते करते भगवान के साथ में जुड़ने से और दूसरा भक्त का कार्यकलाप को देखने से, सुनने से कैसे वो भक्ति करता है,
उसको रियलाइज करने से ये जो होगा। तो वो क्या मांगे? जो वो माने प्रभु ने क्या मांगे? मेरे को परमानेंट चीज दीजिए। कुछ दिन का बाद में वो जो पुजारी है ये गए थे तो बोले आप एक काम करो, अभी यहाँ नहीं आने का जरूरत है, अभी यहाँ पे माँ ने मना कर दिया, इधर मत आओ, तो आपके लिए परमानेंट चीज मिलेगा, उधर जाओ इस्कॉन मंदिर, तो वहां जाके हरिनाम करो। तो इसीलिए उसका बाद में ये परमानेंट चीज मिल गया उनको। पहला क्लास में फिर हिज ग्रेस कृष्ण गति प्रभु उनका गाइड है, तो पहला क्लास इसको यूथ फोरम का, तो उनका बाद में प्रभु यूथ फोरम का चार्ज लिए थे। तो उसका बाद में उनको बोला 20 मिनट का क्लास, ओनली 20 मिनट्स क्लास दिया, ज्यादा नहीं, 20 मिनट्स क्लास, जो जितना यूथ फोरम स्टूडेंट थे पहला बार। तो बोले क्या है, तुम लोग क्लास सुन लिया ना? हाँ। अच्छा बताओ इसमें कौन है, इसका हाथ खड़ा करो, या बताओ तो सुन लिया कि ह्यूमन लाइफ का वैल्यू क्या समझ लिया? हाँ। तो भगवान के लिए सेवा करना है, हाँ, लाइफ को भगवान के लिए डेडिकेट करना पड़ेगा, यस। तो ठीक है, कौन कर सकता है, डिसाइड अभी करो, हाथ खड़ा करो, कौन करेगा? कि अभी डिसाइड कर लिया कि अभी मोमेंट से कि हम फिर पीछे नहीं देखेगा कभी, मेटेरियल तरफ नहीं देखेगा, मेरे को धन संपत्ति नहीं देखना, जाना पना, सुंदरी नहीं चाहिए, मतलब शादी नहीं करना है, तो नहीं किए। नो धनम नो जन्म नो सुंदरी, कविता, मेटेरियल एजुकेशन, पढ़ाई छोड़ दिया। जो पढ़ाई कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग का चल रहा था फर्स्ट पार्ट या क्या है, उसको वहीं से स्टॉप। मतलब जो करता है, जो उसी मोमेंट से जो करता है, जो करे सु कल सो करे सु आज, जो करे सु आज सो करे सु अब। हम लोग सोचते हैं पॉसिबल है क्या? अरे लोग जो उस टाइप का भक्त है, पॉसिबल करके आ गए हैं, उनका लाइफ हिस्ट्री सुनना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा हाँ ऐसा व्यक्ति रहते हैं क्या दुनिया में। यस रहते हैं, हमारा जैसे नहीं रहते हैं, तो ये रहते हैं। तो क्या उसी टाइम में धोना छोड़ दिया? हाँ, मैं भी लाखों रुपए का प्रॉपर्टी था, उस करोड़ों का होगा अभी, तो अभी छोड़ दिया, उसको दिखा नहीं, ओनली वन सन, अकेला बेटा, और सिस्टर है, 3 या 4 सिस्टर है, तो देखा नहीं। वो सिस्टर लोग भी सोचा था मेरा भैया मेरे को कुछ पार्टीशन करके प्रॉपर्टी का पिताजी का देगा, ये नहीं देगा, ऐसे सोचते थे उनका जीजाजी वगैरह। लेकिन ये जब इधर आ गया वो देखा ही नहीं, मोड़ के, जैसे बोलते हैं विष्ठा, जैसे विष्ठा को त्याग करने का बाद में कोई देखता नहीं, लेकिन हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो वो देखा नहीं एकदम। तो धन को ऐसे ही छोड़ दिया, धन जन कोई फलर भी नहीं चाहिए। तो धन उसका बाद में इनका जो रिलेटिव्स है, अभी भी पुजारी सेवा करते हैं भाई प्रभु ने, वो बोला रिटायरमेंट का बाद में वो ये लोग भी चलाया, बोला उनको कोई प्रीचिंग नहीं किया, मतलब वर्बली कोई बात नहीं किया, इनका एग्जाम्पल देख के वो भागे। वो भी निगवानंद या किस में थे पहले, तो ये देखा यार इस्कॉन वाला है, मेरा साला जी ऐसा है क्या? ये तो इसका मतलब ये प्रोसेस ऐसे है कि इसको हम लोग को ये तो कुछ नहीं, हमको तो देख नहीं रहा है, मतलब प्रॉपर्टी को हम सोच रहे थे कि कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, यार सब अकेला बैठा ले जाएगा, लेकिन ये तो कुछ उसको प्रॉपर्टी को नहीं देख रहा है। तो ना धन ना जन ना फॉलोअर चाहिए, हमको कोई मानेगा नहीं मानेगा, कोई नहीं, अकेला चल रहा भैया, अकेला चल, तो वो चलेगा। तो मेरा कोई हेल्प करेगा नहीं करेगा पता नहीं, कृष्ण का ऊपर डिपेंड कर। तो जन 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 न धन न सुंदरी, ब्रह्मचारी, नो शादी, सुंदरी नहीं देखना है, नो शादी। कविता जितना आधा पढ़ाई में जो रहा था उसी से वही पे फेंक दिया, उसी से खत्म, मतलब नौ जन सुंदरी, कविता अम्बा, जगदीश, वो क्या है मोहम्मद जन्मानी, चलो मुक्ति चाहिए, मुक्ति फुक्ति कुछ नहीं चाहिए, ओनली भक्ति, आप नरक में डाल दो फिर भी हम भक्ति करना है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ये होते हैं शुद्ध भक्त का लक्षण। तो हम लोग अहेतु की भक्ति चाहिए। तो ये जो है, इसीलिए हम लोग ये एग्जाम्पल को बहुत क्लोज पर्सन से सीखना चाहिए कि इस टाइप का हो सकता है क्या। तो उसी टाइम में 20 मिनट्स क्लास के बाद में जो बोल दिया, पूछ लिया आपका अंदर में कौन है, जितना मिले 20-30 तो होंगे वहां पे भक्त, तो कौन है? तो एक आदमी बोला अभी से मैं लाइफ को डेडिकेट कर दूंगा, ऐसे बोल देते नहीं, हम अभी बोल के इतना रुपया भगवान के लिए देंगे, तो मैंने ट्राई करेंगे कलेक्ट करके देना है मंदिर के लिए, लेकिन आने के बाद में भूल जा रहे हैं, अरे कैसे होगा? हम अभी सोच रहे हैं 2 दिन से, इतना अमाउंट हाई अमाउंट में बोल दिया, तो कैसे मैं प्रभु को बोला, प्रभु मैंने हम वो गलत कर दिया क्या? तो बोल दिया कैसे होगा? तो प्रभु बोला कोई वो नहीं, गलत नहीं है, आपको अंदर से कोई इंस्पायर कौन किया, वही व्यवस्था करेगा। तो उनका प्रार्थना करते हैं सबके, ये प्रार्थना करते हैं कि हम लोग कैसे
जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट को हम कैसे रख सकता है। वो प्रभु को पास पे प्रणाम करके उनको भक्त लोग का गिड़गिड़ाने से कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो कोई रास्ता है ही नहीं। हम क्यों कैसे बोल दिया ये मैं सोच रहा हूँ, कौन कैसे हो जाता है। तो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जैसे बोला है मतलब होगा, आप इंस्पिरेशन कोई भगवान दिया आपको, तो इसीलिए हिसाब से हम लोग उनका पास में सबका पास में प्रणाम करके प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा जो लाइफ है जो है ये भगवान का सेवा में कैसे कंटिन्यूस लग सकता है, और हमको ट्राई करना है और उनको आशीर्वाद चाहिए। तो दोनों मिलने से हाँ तो फिर हो सक्सेस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इसीलिए जन्म जन्म हम लोग उस टाइप का गुरु महाराज से देखिए, हमारा गुरु महाराज जो है सबका जो शिष्य है प्रभुपाद का, प्रभुपाद कैसे किया, सब फेंक दिया, मतलब लास्ट को कुछ नहीं है, 40 रुपया नहीं है, वो भी ले लिया, नहीं कुछ नहीं चला, खाली हाथ आया खाली हाथ चल जाएगा। तो इस टाइप का हम लोग का तो सब आसक्ति भरा हुआ है प्रभु, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो आसक्ति है उसको कैसे निवृत्ति हो। तो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो जन जन से कैसे निवृत्ति होना चाहिए, प्रभुपाद ने एग्जाम्पल सेट किया, गुरु महाराज ने एग्जाम्पल सेट किया, सारे बहुत सारे भक्त एग्जाम्पल सेट कर दिए, उसी रास्ते में हम लोग पथी कैसे हो सकते हैं प्रार्थना करते हैं। और गिरना महाराज 20 साल हमारा गुरु महाराज हिजोलनेस प्रभुपाद स्वयं महाराज ने हार्डली 21 years at the age of 21 हिजोलनेस जपेश्वर स्वयं महाराज at the age of 21 ये लोग ये मेडिकल इसमें ज्वाइन किए थे, प्री मेडिकल में, तो उनका होता है प्री मेडिकल देन मेडिकल। तो गुरु महाराज ने मेडिकल पढ़ाई को फेंक दिया जो जिस दिन गुरु महाराज एक हॉल में पहले गुरु शिला प्रभुपाद का प्रोग्राम हो रहा था एक हॉल में, वहाँ पे कॉलेज हॉल में कोई पे, तो वहाँ पे गुरु महाराज ने पहले की उनको मिले थे, दर्शन किए थे, उसका पहले ढूंढते थे क्या है क्या है क्या है, लाइफ को कैसे रियलिटी कौन सा है और उसको कैसे प्राप्त होना चाहिए, इसे बहुत ढूंढे। तो देने गुरुदेव को प्रभुपाद को भेजे भगवान ने, तो ये लोग गुरुदेव से जो भी पहले बार मिला तब से वो सब छोड़ दिया, क्रिश्चियन फैमिली का थे एंड उसको छोड़ दिया, धर्म चेंज हो गया, सोकल धर्म एक्चुअली है, चेंज कर लिया। हम लोग छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है, धर्म छोड़ दिया, मेटेरियल एजुकेशन को रास्ता में छोड़ के उसी टाइम में प्रभुपाद का पीछे भाग गया। मतलब प्रभुपाद इस टाइप का पावर था उनका, और उनका शिष्य लोग का भी उसी से ही पावर आया है। बट एनीवे तो वो लोग धन को जन को उसका मतलब शादी ही नहीं किए, ये लोग देखा मोड़ के देखा नहीं लाइफ को, का फैमिली को भी देख मोड़ के देखा नहीं, तो जन मतलब फैमिली ये सबको डाल दिया पीछे में, कृष्ण के लिए कुछ करना है, गुरुदेव के लिए कुछ करना है, लाइफ में उनका गुरुदेव गुरुदेव छोड़कर कुछ है ही नहीं। So they have done everything sacrifice for गुरुदेव and कृष्णा। तो 20 साल से 20 at the age of 21 years, हमारा एज कितना हो गया बस। तो लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसलिए उनका गुरुदेव का आशीर्वाद तो है, कृपा है, हम कृपा भिक्षा करते हैं, भिक्षा क्या है, कृपा तो ऑलरेडी दिया हुआ, भिक्षा करना है, भिक्षा यही करना कि हमको वो शक्ति दे, बुद्धि दे, जैसे उस भिक्षा को मतलब वो जो आशीर्वाद को हम रिसीव कर सकते हैं, आशीर्वाद है ऑलरेडी दे दिया, किसी को दीक्षा मिल गया मतलब ऑफिशियली गुरुदेव ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसका बाद में है क्या, पहले तो एक्सेप्ट नहीं है, अनऑफिशियल था, ठीक है चल रहा है प्रैक्टिस, शिला प्रभुपाद इज आवर शिक्षा गुरु ऑलवेज, तो प्रैक्टिस कर रहा है, तो दीक्षा ले लिया तो ऑलरेडी हो गया, मतलब एक्सेप्टेड है, बट उसको प्रॉपर्ली रिसीव करना है हमको, रिसीव बीज तो विपन बपन कर दिया, उसका बाद चैंटिंग हियरिंग एंड शास्त्र स्टडी, सेवा साधना सेवा स्वाध्याय सदाचार देन संग, ये 5 एस, हाई पेस में रहना है, उसका बाद में करके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये संग बहुत इम्पोर्टेंट है, एसोसिएशन संग, भक्त संग संग में रहेगा, देन साधना करेगा, चैंटिंग हियरिंग, देन सेवा करेगा, स्पेसिफिक सर्विस गिवन allotted to us for preaching or whatever cooking, सेवा, श्रोधाय स्टडी दिस भागवतम भगवत गीता, श्रोधाय सदाचार, मेंटेन वैष्णव एटिकेट, तो ये 5 एस में हम लोग को चलना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने सब दे दिया है, संग भी दे दिया, शास्त्र भी प्रभुपाद ने दे दिया, क्या नहीं दिया, प्रोसेस बता दिया, जपमाला भी गुरुदेव दे दिया, जप करने के लिए इनिशिएशन दे दिया, उसमें जप कर दे दिया, ऑथराइज कर दिया, सारे तो दे दिया, किताब भी भरा हुआ है, हमारा अलमीरा भरी हो गया है। हमारा वो धर्मपत्नी बोलता है क्या तुम्हारा इतना किताब है,
तो क्या करते हो, कुछ पढ़ाई कभी करते हो? खाली देखते रहते रखते हो, कहाँ पे रखने के लिए भी 2 साल में भर गया, लेकिन कभी पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। क्या करें हम लोग, क्या करें, मतलब हमारा नालायकी है, ये सब तो करना पड़ेगा चेंज। तो ये धन का पीछे में, जन का पीछे में हम लोग भाग रहे हैं, दैट इज थिंग एक्चुअली। लेकिन चेतना पर बहुत कृपालु है, उनका मर्सी को एक्सेस करना है, गुरुदेव का मर्सी को एक्सेस करना पड़ेगा। चेतना प्रभु का कृपा को, आशीर्वाद को हम लोग मांगना पड़ेगा। उसको कृपा तो मैं हर है दे रहे हैं, लेकिन हमको उसको ग्रहण करने के लिए भी कैपेबिलिटी, पात्रता होना चाहिए। वो पात्रता है उनका, उनको प्रार्थना बार बार करते हैं और मांगते हैं, और अपना लाइफ को ट्राई भी करते हैं अपना तरफ से कैसे उसको रिसीव करें। तो इनका जज को बढ़ाना है, जैसे भी, और दिन रात उनका जज कैसे बढ़ेगा उसको सोचना है, और कर्म में, उसको एक्टिविटी में उसको कन्वर्ट करना है। चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो तारे ही देश। तो इसलिए चतुरामृत का जो है इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को अपना लाइफ का होल एंड सोल समझना है, और कुछ नहीं है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य आर ना करियो मने आशा। तो चित्त ऐक्य नहीं हो पा रहा है। ऐसे गुरु का इंस्ट्रक्शन को हम लोग चित्त में, माइंड में फिक्स करना है, ऐक्य करना है, मतलब दुख नहीं करना, ऐक्य मतलब सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड अटेंशन उसका बोलते हैं। कॉन्शियस शुड बी फिक्स्ड इन वन पॉइंट, दैट इज गुरु मुख पद्म वाक्य। गुरु का मुख से जो वाक्य, मुख पद्म से जो वाक्य निकला, उसी को जो इंस्ट्रक्शन दिया, चैंटिंग करो, अपराध निकाल, 10 अपराध छोड़ो, भगवान का नाम प्रचार करो, ये सब करो। तो उसमें चित्त ऐक्य करना है, एक फिक्स कर देना है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के लिए 2.41 भगवद गीता का जो इम्पोर्टेंट है श्लोक, व्यवसायिका बुद्धि एक है गुरुनंदन बहु शाखाई अनंतस्य बुद्धिया व्यवसायिना। दिस इज द श्लोक व्हिच प्रभुपाद हैज, उसका उनका लाइफ को गाइड करने के लिए ये श्लोक उनका लाइफ को गाइड किया। एक ही श्लोक भगवत गीता का जो उनका पूछने से क्वेश्चन आंसर आता है, इसलिए प्रभुपाद वाज गाइडेड हिज होल लाइफ आफ्टर मीटिंग हिज स्पिरिचुअल मास्टर इज ओनली वन श्लोक, दैट इज भगवत गीता चैप्टर 241 श्लोक। ये क्वेश्चन का आंसर है, संदीपनी पुण्य प्रभु बता रहे थे। तो इसीलिए एक सिंगल पॉइंटेड अटेंशन होना पड़ेगा। व्यवसाय का बुद्धि एक है गुरु नंदन, तो व्यवसाय है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है। यहाँ पे व्यवसाय हम लोग का क्या है, कृष्णा कॉन्शियस है, तो भक्ति है, तो उसको हम लोग एक सिंगल पॉइंट अटेंशन में रखना पड़ेगा। तो अगर कोई भूल त्रुटि है तो माफ करिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। पूर्णिमा देवी देशी माता जी, दीक्षा का बाद में और भी इंथुसियाज्म बढ़ जाएगा अभी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। दीक्षा परे तो सेवा देबे कौन आउ मोर सेवा करि परिबा, सेवा साधना संग शास्त्र ए जिनस तो हमको दिया हला। तापरे निजर कर्तव्य केमती करि परिबी, कृपा करिवे प्रभु, आपको गाइडेंस तो अच्छी, तो जमती फॉल डाउन हेबिनी, से सीरियसली चिंता करी। किसी सेवा प्रभु सेवा तो चली से प्रसाद कुकिंग ये सब साधना ये सब टे, तो सकाळ टाइम टा एंगेज हो जाउची। कृपा करिवे प्रभु, आगो को टिके केमती मु सीरियस है। हरे कृष्ण। थैंक यू भाई, कमिंग फ्रॉम कृष्णा। तो कृष्णा कृपा कर रहे हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद, तो कृपा का मूर्ति है, उनका बात को मानना है,
उनका ऑथराइज पर्सन लाइक शिला प्रभुपाद का जो गुरु शिष्य है उनका बात को मानना है, तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, तब हमको कृपा का एक्सेसिबिलिटी मिलेगा। By always there, so we have to access through the instruction of the Guru Maharaj, so the instruction of Srila Prabhupada. How much instruction we are able to follow sincerely, without doubt, without delay. Don't doubt, don't delay. Instructions are powerful instructions बोलते हैं, powerful instructions, powerful instruction, because वो instruction में power है, वो कृष्ण का power है उसमें, उसको follow करने से वो power, follow करने के लिए power उसी में है, उसको कोई डाउट किया उसका पावर घट जाएगा, डिले किया उसमें भी घट जाएगा, इसलिए डोंट डाउट डिले, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। और जब जितना एक्सेस करने के लिए चाहेंगे वो क्विकली उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, डाउट नहीं करना है, डिले नहीं करना है, सिंपली प्रैक्टिकली कन्वर्ट करके हम जो सुना समझा उसी को एक लाइन में बताया कि कृपा शिला प्रभुपाद का पास में कोई गया कृपा मांगने के लिए। एक बार शिला प्रभुपाद हैदराबाद से शायद कोई फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, उस टाइम में एसी फर्स्ट क्लास भी था पता नहीं, लेकिन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट रहता था, उसमें एसी नहीं था, बट इट वाज ओनली क्लोज्ड। हम लोग भी इनिशियली जब दिल्ली जाते थे, मतलब जब जॉइन किया एनटीपीसी वगैरह, फर्स्ट क्लास था, तो फर्स्ट क्लास तो एसी नहीं है, बट इट वाज क्लोज्ड एज वी आजकल जिसका है। प्रभुपाद वाज इन दैट फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट along with his some of the disciples। देन उस स्टेशन में रुका हुआ गाड़ी, उस टाइम में कुछ व्यक्ति घुस गए, तो आके शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए, तो एक आदमी उस टाइम में बाथरूम गया थे, एक डिवोटी, तो वो दरवाजा क्लोज करके रखे थे, करेगी तो कोई दूसरा घुस जाएगा। बाथरूम से जब आए तो खोल के अंदर जाना था, तो अंदर जाएंगे, लेकिन अंदर जाकर शर्टली उसको जल्दी वो डोर को बंद करना था। वो बंद करने के टाइम में एक आदमी उसका बंद करने का दिया नहीं, उसका एक पैर रख दिया उसमें, इसलिए माने दरवाजा बंद नहीं हो पाया। प्रभुपाद बैठे हैं, इस आदमी का जो नजर है प्रभुपाद का नजर से मिल गया, तो प्रभुपाद को नॉट डिनाई टू एंटर, ओके ओके प्लीज कम आए। तो देन बोला कि उसका साथ में एक बच्चा, उसका बच्चा है, तो बोला प्रभुपाद आप कृपा करिए मेरा ये बच्चा को, आप कृपा करिए। प्रभुपाद बोला हाँ हम कृपा करते हैं, हमारा साथ में जैसे देख रहे हो ना वो ब्रह्मचारी है, ये सब टकला टकला है, तो आप भी एक काम करो, ये इसको यहाँ छोड़ दो, इसको भी टकला बना देते हैं, हमारा साथ में इसको छोड़ दो, इसका कृपा भी हो जाएगा। तो बोले नहीं इस टाइप का कृपा नहीं चाहिए, बोलते भाग गया। तो हम लोग को कृपा ऑलरेडी मिलता है कि भक्ति करने के लिए ऑलरेडी कृपा है, तो वो कृपा हम लेते नहीं है, मतलब इट इज नॉट, हमको कितना छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन मिला है एक दो, उसी को हमको करना है। तो उसमें प्रभुपाद का ही है कृपा, मतलब भक्त बनो। हाँ गुरुदेव का प्रभुपाद बोला जिसका दो बेटा है, दो तीन है, एक बेटा हमको दे दो बोल के बोला, लेकिन माँ लोग उसको देते नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं बनाना है। वो कोई एक इसको ने ज्वाइन कर लिया, उसका पिता माता आके उसका टेम्पल प्रेसिडेंट को हड़काता है, तुम इसको इतना कम एज में क्यों इसको ले लिया, तो कितना एज में लाना चाहिए, 50-60 होता तब तो उसको रखना चाहिए, ठीक है अभी से यंग लड़का है इसको रख देते। तो बोले कोई बात नहीं, तो आपका एज कितना है ना, मेरा 60 है, तो कोई बात नहीं आप रह जाइए, इसको ले जाइए, ये घर चला जाएगा, आप रह जाइए। तो देन वो भाग गया। तो इसका कहने का मतलब है तो वो बोला 50-60 साल में तुम भक्ति करना है, तो ठीक है आपका कितना हो गया, तो आप रुक जाओ, नहीं मैं नहीं कर सकता। इसलिए तो ये सबके लिए हम लोग के लिए है, इम्प्लीमेंट करना है, कृपा ऑलरेडी दिया। सो इंस्ट्रक्शन में कृपा रहता है, पावर रहता है, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन मींस इन विदाउट डाउट डिले, तो कृपा मिल जाएगा। तो उसी से कृपा मिलता है। कृपा कैसे मिलता है, फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है कोई सिंसियर, कोई गुरुदेव कोई बोला है किसी को ऐसे करो, हमारा टीचर ने एक बार किसी को बोला, हम थे उस टाइम में, दूसरों को दूसरे इंस्ट्रक्शन देते थे, इंस्ट्रक्शन मतलब रिकमेंडेशन बोलते थे इंस्ट्रक्शन को, और इंस्ट्रक्शन बोल देंगे तो प्रॉब्लम है क्योंकि फॉलो नहीं करेगा तो फॉल डाउन होगा, इसलिए रिकमेंडेशन बोलते थे। यू शुड डू बोलने से प्रॉब्लम है, यू मे डू करने से यू कैन डू इट, तो चल जाता है, दैट इज रिकमेंडेशन। शुड मतलब यू हैव टू, जैसे प्रभु बोलता है, मेरे को कभी कोई बोलते हैं सुविधा होगा तब ये फंक्शन है तो आ जाइएगा, तो टिफिन क्वार्टर फंक्शन में, तो मैं बोलता हूँ तो सुविधा होगा मतलब 100% है, बोलते हैं आप आना है, मेरे को बहुत रेयर बार बोले हैं, एक या दो बार बोले ये फंक्शन में आना है, तो उसमें तो 200% मेरे को शेयर करना है, मतलब 100% नहीं है। उस टाइप का शुड और कैन में डिफरेंस है। तो हम लोग
इसीलिए इंस्ट्रक्शन रिकमेंडेशन किया ना, ये इंस्ट्रक्शन बोलते बोलते हैं शुड। तो हम लोग को उसको कैसे, देखिए प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, देखिए इसको पहले भी पता होगा बट थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, हमारे टीचर क्या समझाया है, जो भी हम समझा उसको बोल रहे हैं। तो ये सब उनका गुरुदेव का कृपा से जो आता है, तो ये इसीलिए हम लोग को इंस्ट्रक्शन को बोले, प्रभु जी हम क्या करना है, पहले तो हम तो उनका पास में जाना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। पूछ लिया तो डेंजर है, क्योंकि पूछ लिया तो बोल देंगे रिकमेंडेशन है। हाँ प्रभु जी हम लोग को कृपा करिए। अच्छा कृपा ठीक है, कृपा मतलब आप ऐसे ही करो तो ये कृपा मिल जाएगा, लेकिन हम लोग पूछ लिया फिर उसका बाद में करेगा नहीं, वो और भी डेंजरस है। तो उसका मतलब पूछेगा भी नहीं, वो भी डेंजरस है। तो हाँ, किसी को बोला गया ठीक है आप ये काम करो, आप यहाँ पे ज्वाइन कर जाओ, तो हम लोग बोलेगा ठीक है, साल 5 साल का बाद में ज्वाइन करेगा, तो कृपा कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। सिमिलरली हमको बोला हाँ आप सिंसियरली चैंटिंग करो, गुरुदेव ने, हम चैंटिंग करेगा, माइंड इधर उधर घूम रहा है, सिंसियरली चेष्टा करना पड़ेगा। तो जो ये करेगा तो वो बोला विदाउट ऑफेंस करो, जैसे आप बोला तो उसको करना है, करने से ऑलरेडी कृपा उसमें है, कृपा इज ऑलरेडी इनबिल्ट, उसको अलग से कुछ नहीं ढूंढना है, इंस्ट्रक्शन का अंदर में इनबिल्ट है। वो इंस्ट्रक्शन को जो डाउट करके इमीडिएटली करना है, एंड उसको डाउट नहीं करना और डिले नहीं करना। डाउट होगा, डिले होगा तो इंस्ट्रक्शंस में पावर घट जाएगा। आप हम उसको बाद में करने के लिए ट्राई भी करेंगे, करना मुश्किल होता है। अगर इमीडिएटली विदाउट डाउट करेगा, जैसे बोला कल कपिला को बोला तुम ये मंत्र चैंटिंग करो, वो कपिला जानता था वो बेकार नाम दिया है, फिर भी बोला मेरे को गुरुदेव बोला करना है, तो वो इमीडिएटली उसको शुरू कर विदाउट एनी डाउट। कल जो बोले डिले एंड डाउट, हम तो हमें भी कल कोई उसमें थोड़ा गड़बड़ बोल लेते हैं भाई, डाउट एंड डिले ये दोनों चीज को अवॉइड करो। फेथ मतलब डाउट नहीं, डिले नहीं है। और इसको रिपीट भी बहुत बार किया गया, फिर भी लोग करने का टाइम में एक वर्ड को भूल जाते हैं। एक वर्ड को कैसे भूल जाते हैं हम लोग, कल कोई बता रहे थे, सॉरी टू से, बट एनीवे भूल कैसे जाते हैं, सेम चीज को रिपीट कर रहे थे, डाउट को डाउट है तो ऐसे बोल रहे थे, डाउट एंड डिले नहीं रहना है। इतना क्लियर मैसेज है, हमारे टीचर बताया है। तो उसका बाद में अगर हम लोग जैसा करेंगे अपना ऊपर में डिपेंड करते हैं, किसी का कृपा है, कृपा सबका है, भगवान का ही कृपा है। हम एक बार प्रभु को बोला प्रभु थोड़ा कृपा करिए, तो कृपा, मैं बोला हम तो इसे कर नहीं सकते, मेरा कैपेबिलिटी नहीं है, आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस, आप थोड़ा कृपा करिए। पहले बोला क्वालिफिकेशन क्या है, यही तो क्वालिफिकेशन है, जो डिस्क्वालिफाइड है वही क्वालिफाइड है। सेकंड बोला कृपा ऑलरेडी है, आप सेवा करने से कृपा मिलेगा, और कृपा मिलने से अधिक सेवा करो, अधिक सेवा करने से अधिक कृपा मिलेगा, फिर अधिक कृपा मिलने से अधिक सेवा करो। तो इसलिए ये सेवा एंड कृपा इज रिलेटेड टू, मैंने परिपूरक टाइप है। सेवा करने से कृपा मिलता है, भगवान के साथ में जुड़ने से, सेवा करने से उनका कृपा मिलता है। वो किसी का माध्यम में हम करते हैं, गुरु का माध्यम में। तो सेवा एंड कृपा इस सिंपल चीज है, रिलेटेड है। सिंपली एक एक लाइन बोल देते हैं, उसमें हम पूरा सारांश मिल जाता है। मैं पूछा तो एक बार ऐसे बोला, पूछा था हमारे घर का सामने में बगीचा में है, एक बार फोन किया था प्रभु को, याद है? तो प्रभु ये कुछ सेवा के लिए था, तो प्रभु कुछ हम तो क्वालिफाइड नहीं है, इसको तो क्वालिफाइड नहीं है, आप कृपा करिए तो हम करेंगे। तो बोला क्या है क्वालिफाइड, क्या है क्वालिफाइड? यही तो क्वालिफिकेशन है कि अनक्वालिफाइड जो फील करता है वही क्वालिफाइड होता है। सेकंड है, दूसरा है कि आप कृपा, हाँ सेवा करो, आप सेवा कर, तो वो ऐसे नहीं बोलते, वो उनका सिंपल वे बोलते हैं। तो सेवा करने से कृपा मिलेगा, और कृपा मिलने से अधिक सेवा करना है, और अधिक सेवा मिलने से अधिक कृपा। वो डायरेक्टली बोलते आप करो बोलते नहीं, वो जनरलाइज करते हैं। तो जैसे लाइन है, कृपा मिलेगा, सेवा करने से कृपा मिलेगा, कृपा मिलने से अधिक सेवा करेगा, अधिक सेवा करेगा, अधिक कृपा मिलेगा। भगवान का पास में जाकर कृपा मांगते बन रहा है, ये सेवा ले जाओ, हम कृपा मांग रहे ना, हरे कृष्ण मांगते तो आस्किंग कृपा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी कृपा करिए, क्या कृपा? कृष्ण का सेवा करना है, अरे आजा आजा, कृष्ण सेवा देते ही बहुत सारा सेवा यार करने के लिए आदमी चाहिए, मेरे को नहीं है उनका पास में बहुत है, फिर भी कृपा करते हैं हमको सेवा देने के लिए, हम तो सेवा मिलने से भागी जाते हैं। तो सेवा मिल गया है, तो इसीलिए कृपा किसी को नहीं मांगना है। मतलब मैं आज भी प्रेयर कर रहा था कि सोच रहा था भाई गुरुदेव गुरुदेव कृपा करो, मतलब क्या गुरुदेव मेरे को पावर थोड़ा दीजिए, तो मैं कैसे आपका सेवा कर सकता हूँ ठीक से, यही हमको चाहिए। और तो कृपा तो आप कर ही दिया है ऑलरेडी, तो लेकिन उसको भी फॉलो करने के लिए और थोड़ा सा आप कुछ आशीर्वाद दीजिए ना। तो मैं भी, मेरे को शक्ति दीजिए, मेरे को बुद्धि दीजिए, मेरे को ज्ञान दीजिए, इवन रिक्वायर तो धन भी दीजिए, सो दैट वो धन लेकर हम आपका सेवा कैसे कर पाए। अभी मंदिर करना है 15-20 करोड़ 30 करोड़ चाहिए, उसके लिए धन चाहिए,
तो उसके लिए क्या धन नहीं चाहिए? तो धन भी, लेकिन धन चाहिए, धन मांगना है कि न धनम न धन, ये सारे धन जन सब चाहिए, सेवा करने के लिए चाहिए, उधर किस लिए चाहिए? धन जन, हाँ, ये सब किस लिए चाहिए? चाहिए, सब कुछ चाहिए। फॉलोअर नहीं होगा, कुछ लोग नहीं रहेंगे, सेवा कैसे होगा? बट एनीवे, डिफरेंट रियल अलग ढंग से ये सोचने से अतः सारे चीज चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं है, सब जोड़ना है। उस दिन कोई डिवोटी आया था, प्रभु जी हम नौकरी छोड़ेगा, मैं कोटी को नौकरी पीएचडी छोड़ेगा, अरे कुछ छोड़ो मत यार, उसको जोड़ो जोड़ो रोको। तो पैसा पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? बहुत सारा पैसा चाहिए। ब्रह्मानंद प्रभु उस दिन गए थे तो ग्लोरिफिकेशन में शांतिपन प्रभु उनका ग्लोरिफिकेशन बाद बोला, आपको लक्ष्मी देवी बहुत कृपा करे, आप बहुत लक्ष्मी मिले, मिलने से क्या होगा? तो मिलने से भगवान का स्वर लगाएगा, इसीलिए लक्ष्मी मिलना चाहिए। गरीब होना नहीं चाहिए, गरीब होना जरूरत नहीं है, धनी होना चाहिए, लेकिन धनी भी बेगर होना चाहिए। सबसे बोला कि जो अमरीश महाराज सबसे बड़ा, वन ऑफ द रिचेस्ट डिवोटी, बट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेगर फॉर मायापुर मंदिर बिल्ड करने के लिए। उनका प्रभुपाद का ये सेवा लिए हैं, प्रभुपाद जो डिजायर था उसको फुलफिल करना है। तो हर जगह में उनका लेवल में जितना इंडस्ट्रियलिस्ट है सबको जाके बड़ा बड़ा भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा दीजिए, भिक्षम देही भिक्षम देही भिक्षम देही। सबसे बड़ा बेगर बनना पड़ेगा, धनी हो तब भी बेगर है, वही तो कॉन्ट्राडिक्शन है। धनी फिर भिक्षा क्यों करता है? तो एक बार हमें प्रभु ने बोला था किसी को, तो ये जो मलकानीगिरी सेंटर के लिए, तो बोला पंकज दास का क्या जरूरत क्या है जाके भिक्षा मांगना है? मैं एक आदमी मेरा एयरटेल में वो जाया था मेरे साथ में, वो यहीं पे रहता था, 300 रुपया मेरे को दिया था। इतने पर्सन कोई 500 देता है, मैं मांगा भाई जो भी दे दो, तो 300 रुपया भी हम लिया है उसके लिए, कोई बात नहीं 100 रुपया भी दे दो, तो 300 रुपया हो 500 रुपया हो हम मांगा है। तो मतलब भाई तुम्हारा जितना शक्ति है थोड़ा सा दे दो भैया। तो हमारा काफी जूनियर लड़का था यहाँ पे, तो 300 रुपया भी दिया था। तो हम भिक्षा करेगा, किसके लिए करेगा? भगवान के लिए हम भिखारी है। उसमें हमारा ये भी होना चाहिए, हम भगवान का भिखारी, दूसरा का थोड़ी भिखारी है, भगवान के लिए भिख मांग रहे हैं, तो हम लोग को भिक्षा मांगना पड़ेगा और अपने के लिए नहीं मांगना है। अपने के लिए भिक्षा, अपने ऊपर भगवान जो देगा उसमें खुश रहना है, लेकिन भगवान को अच्छा से रखना है, तो इसके लिए भिक्षा मांगना है। अभी मंदिर के लिए भिक्षा करिए, सब डेली किसी किसी से कांटेक्ट करिए, और उसका बाद में खाली अपने कंट्रीब्यूशन नहीं करने से नहीं होगा, दूसरा का भी मंगल कैसे होगा? दूसरा अगर भक्ति नहीं करता है, उसका पैसा लगेगा तो मंदिर में, तभी तो उसका उद्धार होगा। तो हम लोग अपना भी देना है जो परिश्रम का फल, दूसरा का भी जो परिश्रम फल उसको लगाना है। उसके लिए जाएगा, वो गाली देगा, 2-4 बार रिटर्न करेगा, बोलेगा कहाँ से आ गया तुम लोग, हाँ ये सब इस्कॉन वाले क्या करते हैं, पैसा सब अमेरिका से अमेरिका भेज देते हैं पैसा लेके, कि गाली सुनना पड़ेगा, उसको पता नहीं। उसके लिए तो बैठा हुआ है हम लोग, उसी में हमारा ह्यूमिलिटी बढ़ेगा। भिक्षा करने से ह्यूमिलिटी बढ़ता है ना, इसीलिए तो भिक्षा करना है, हमको बड़ा बेगर बनना पड़ेगा। अपना अपने के लिए नहीं है, भगवान के लिए भिक्षा करेगा। इसलिए प्रभु ने बोला था, किसी को बोला उसका जरूरत क्या था कि भिक्षा करने का, तो भगवान के लिए भिक्षा करना है। 200 रुपया 300 रुपया हो कोई बात नहीं भैया, तो लेकिन हाँ रुपया नहीं होगा, कोई मेटेरियल भी भिक्षा करना है। तो प्रभु बोला था मेटेरियल भिक्षा करो, बोले 500 बैग दे दो, 200 बैग सीमेंट दे दो, 100 बैग से 50 बैग सीमेंट या 1 ट्रक ईटा, तो उसमें क्या ना थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसे बोल रहे थे। तो थैंक यू फॉर योर गुड क्वेश्चन, एंड वट एवर गुड रिप्लाई कम्स फ्रॉम गुरुदेव से, वो रिप्लाई से थोड़ा सा हम लोग प्रेजेंट करने का ट्राई किया। डाउट कुछ नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस कृपा क्या है क्लियर होना चाहिए, और कृपा को पाने के लिए तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानी ज्ञानी ने तत्वदर्शिना, कृपा उसी माध्यम में आएगा जो प्राणिपातन करेगा, परिप्रश्न करेगा, और प्रश्न का बाद में जो आंसर मिलता है उसको सेवा में उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो कृपा ऑटोमेटिकली आएगा। इसी को बोलते क्वालिफिकेशन ऑफ ए स्टूडेंट। वो स्टूडेंट कैसे होना चाहिए? प्रणिपात परिप्रश्न सेवा, तो देन ओनली कृपा है। रिसीविंग द कृपा इन द ट्रांसलेशनल नॉलेज, रिसीविंग द ट्रांसलेशनल नॉलेज का प्रोसेस है, जो भक्ति का प्रोसेस है, ये करने से कृपा मिलेगा, ऑलरेडी है, उसके लिए अनलिमिटेड है, कोई कम नहीं है कि एक ले जाएगा तो दूसरा बच जाएगा। लाइन में 1000 लोग है, सबको कृपा अनलिमिटेड मिलेगा। हम लोग सोचते हैं अरे वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लास्ट में जो रहेगा प्रसाद मिलेगा क्या? नहीं, इसलिए आगे भाग जाते हैं हम लोग, है ना। नहीं, वो भगवान का प्रसाद कृपा सब समय अनलिमिटेडली है,
और सबके लिए इसलिए लास्ट इसमें भी 1000 लोग थे जो दीक्षा दिन का जो था उस दिन 1000 पीपल हैव कम फॉर प्रसादम। आई केम टू नो लेटर। हमें प्रभु ने दोबारा प्रसाद बनाया, चढ़ाया, चावल वगैरह सब बनाया। तो जग के बैठते हैं, सवेरे बनाया, कितना लोग आएगा पता नहीं, 500 के लिए कहा होगा, फिर 1000 आ गया, फिर दोबारा बैठा। तो ये भक्त जग के रहते हैं। ऐसे थोड़ी है कि हम एक एक, इसीलिए भी एक एक व्यक्ति का, एक भक्त का बारे में सुनेंगे तो उसका क्वालिटी देखेंगे ना, वो उसके बाद में हमको पता चल जाएगा कि रियल कृष्णा भक्त कौन है, रियल गुरु भक्त कौन है, वो पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं हम लोग बहुत लिप सर्विस, ये लिप सर्विस, प्रभु ने साइलेंट, वो बात नहीं करेगा, कर्म करके दिखाएगा। इसीलिए वो नौ धर्म नौ जन्म नौ सुंदर भगवान पर डिपेंडेंट है, सारे कुछ आ रहा है। हरे कृष्ण। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है, उस टाइप का डिवोटी को मिला जो कि लाइफ में गुरुदेव के लिए सारे चीज को छोड़ दिया। और उसका एग्जाम्पल इसे एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसको उसका साथ में मिलेगा ना, देखेगा, उसका बता हुआ रास्ते को फॉलो करेगा तो हमारा लाइफ भी सक्सेसफुल हो जाएगा। हम लोग ऑर्डिनरी लेवल का भक्त का साथ में नहीं मिल रहे हैं, मतलब जो शुद्ध साधु है उसी तरफ, उसी टाइप का भक्त है, उसी का हम लोग मिले हुए हैं। ये बहुत फॉर्चुनेट, उसको जो एक्सेस नहीं किया, क्या इतना क्लोजली मिला चीज को, हम लोग छोड़ दिया। आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो लाइफ को बर्बाद कर दिया। सॉरी। हरे कृष्ण। मितारानी माता जी, नाउ आपका स्टेबल है या और भी कुछ 1-1.5 महीना हो गया? शादी फादी तो हो गया होगा, और कुछ करना है? आई वाज थिंकिंग अबाउट टुडे इन द मॉर्निंग, प्रोग्राम हैज स्टॉप्ड सिंस लॉन्ग। तो हम भी भूल जाते हैं इसका बाद में, क्योंकि गैप हो जाता है तो कुछ होता है। जब चलते रहे, चलते का नाम गाड़ी, चलते रहेगा, बंद हो गया तो स्टॉप। हरे कृष्ण मित्राणी माता जी। हरे कृष्ण। श्रद्धे प्रभु। हरे कृष्ण। संडे, संडे है, मंडे, रोज लो भगवान का नाम, कीर्तन करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत टू ऑल डिवोटी। आज आपने तो बहुत सारे चीज बताए, वही जो कृष्ण भोगी और गुरु भोगी उसके बारे में आपने बताया। और कृपा करने के लिए आपको सेवा ही करना पड़ेगा, जितना भी सेवा करेंगे उतना ही अनलिमिटेड कृपा है। बहुत सारे चीज से बताए, हम लोग को वही है, मोटिवेशन मिलता है कुछ करने के लिए। थोड़े थोड़े प्रयास करेंगे तो कृपा मिलता रहेगा जरूर। हम लोग कुछ वही है जो प्रभुपाद का मिशन है, जो अपना हमारे प्रभु का जो मिशन भी है, इसमें अपना जो भी है शायद वो करेंगे, क्योंकि वो चीज जो हमें पता चल गया है उसको तो अभी हम छोड़ ही नहीं सकते कि ऐसा नहीं है, गलत चीज पे पकड़े, तो इसको ही हम लोग सक्सेस कराएंगे। प्रभु का कृपा रहेगा तो, और हमारा प्रयत्न रहेगा तो करेंगे। और वही आपका जो सुबह सुबह सुनते हैं वो मोटिवेट होते हैं। माँ तो ऐसे ही है, हम लोग भूल जाते हैं, बट इतने तो है नहीं, बट वही कर रहे हैं। और वो हमें आपको जो क्लासेस है वो मोटिवेशन दे रहे हैं, तो उसमें संस्था में जुड़ा करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु। ये सब ऊपर से आता है, बिकॉज वी ट्राई टू सर्व इन द मूड ऑफ सर्विस, तो फिर वही होगा, जैसे भी होगा। ये हम लोग का कोई कैपेबिलिटी नहीं किसी का टच करने के लिए हाथ, ये टच करता है जो प्रभुपाद का बानी है, उसको हम कैसे ट्रांसपेरेंटली पहुंचा सकते हैं इन द सर्विस मूड, तभी वो टच करेगा, अदरवाइज नहीं है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू गुरु एंड गोरा घसला प्रभुपाद। हरे कृष्ण। एनीबॉडी स्टॉप अप प्रभु? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। पूरा आप सारा गर्भ 360 डिग्री एंगल में सब डिस्कशन हुआ। और आज का सारांश इसे है जे माने डोंट डिले डोंट डाउट, माने वी मस्ट अवॉइड इट। तो शुभस्य शीघ्रम। तो आमर पद्मावती माता जी भी बहुत सुंदर आलोचना रखुले, केमती आमको एबे माने इनिशिएशन परे आमे केमिति हाउ मच स्टिक टू आवर प्रिंसिपल, आ सेटा प्रैक्टिस करिया पड़िबो।
ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ମେटेरियल सेंस को माने हम लोग को हर टाइम स्पिरिचुअल कन्वर्ट करना है ଆଉ ଯାହା ଆମର ସେଜ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମିଶନ ଭିଜନ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ फुलफिल କରିବାକୁ पड़िବ ଆପଣ तो जो अपन हर टाइम हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए तो श्रील प्रभुपाद और जो मैजिशियन पीसी सरकार एग्जांपल दौले बहुत सुंदर कथा आगुरी भी आप बहुत थर कहते तेणु एक्चुअली माने जो बार्थ और डेथ माने नो वन कैन रेस्ट्रिक्ट तेणु यहाँ प्रभुपाद चिंताधारा थिला एवं सी करें एवं करिक भी देखते तेणु जड़े प्योर डिभोटी माने माने कैनॉट शो एग्जिबिशन आपन जहाँ कह जमी अमाई प्रभु मु भी देखी माने प्रैक्टिकली माने सी माने जहाँ कहती सेटा करती माने करिक देखती बेसी कथा कहती ना तेणु से माने केवल ही स्ट्रेस दियंती माने सर्विंग लॉर्ड केमिति भगवान को सेवा करिबा तेणु तेणु भक्ति आम जदि करवा ताले आमर प्रीवियस पार्थर जहाँ भी सब पाप से सब खत्म हो तेणु आम जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को आम प्राधान्य देवा उचित जो नो मीट ईटिंग नो इलिसिट सेक्स नो गैम्बलिंग और 16 राउंड चांटिंग ये सब तेणु बहुत सुंदर सुंदर जोटा अन्य कौन ना आमर से ब्रजनंदन महाराज जो आसते मुझे लेक्चर शुणुली माने अति सुंदर भाव में धीरे धीरे कहीकि माने बढ़िया कर बुझौले केमती कहले आम लोक कहूँ बोले टीवी देखा एत समय टाइम मिलूँ किंतु सी 2 राउंड 4 राउंड करा निजर मंगल मान से अन्य मानकर मंगल सीटा से करना किंतु करें तार आवश्यकता केते से केवल जी माने कष्ट कर जी जानी सार जमी कहते माने बांझकी बुझे प्रसव वेदना तेणु से आम जेहेतु ये मार्ग में जोड़ी रही आमको यहाँ अत्यंत आनंद प्रदान करुच्ची तेणु जमती सार कहले माने दीक्षा के बाद जो भगवान माने गोत्र जमी चेंज है जो मैरेज हलापर जमती माने माने कौन वाइफ गोत्रटा हजबैंड गोत्र हो जाए तेणु से भाया तेणु आम भगवान को जोड़ी हो माने एवरीथिंग ऑटोमेटिकली दैट विल बी चेंज तेणु आहरी बहुत सुंदर कथा कहले जमी राम और राम नाम और राम माने भगवान माने केमती अभिन्न अटंती टॉयलेट एग्जांपल आपन दौले अति सुंदर सुंदर कथा आज सब आलोचना है तेणु आम तन मन धन ये सब कर्म ये सब माने कौन हम लोग को अर्पण करना है समर्पण करना है तेणु शुद्ध भक्तिर तो केवे विनाश नहीं अति सुंदर कथा आज बहुत माने सुंदर सब आलोचना रखिले जमती एग्जांपल देले प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज तेणु ये जो न धनम न जनम आपन कहले सुंदरी कविता माने ये माने सबका लाभ माने सबूर माने लाभ ही लाभ तेणु आम ये सब अवॉइड करिया उचित तेणु कृष्णा कॉन्शियस इज द ओनली क्लियर कॉन्शियसनेस तेणु आम आग भक्ति मार्ग बढ़िया कहले तेणु ये आमको माने आमे आमे भाग्यवान वी आर फॉर्चुनेट माने ये एसोसिएशन पाइचे प्योर डिवोटींकर जहाँद्वारा आम अनेक कथा जानुचे तेणु आम चेष्टा करवा निश्चित माने एटा निजको माने अन्य को शेयर करवा आउ ये जो भक्ति मार्ग जो प्रोसेसटा रही माने जो रिसीविंग द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज निश्चित भाव में आमको यहाँ आगू बढ़ापी प्रेरणा जोगेब प्रोवाइडेड आमे आमर प्रार्थना और प्रयास को जारी रखा उचित सो थैंक यू फॉर द इंस्पायरिंग क्लास टुडे हरे कृष्ण सर दंडवत प्रणाम Hare Krishna, Astos Prabhu. Then after that we will close. Hare Krishna. Okay. हाँ कौन है प्रभु? हाँ हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु प्रभु आज क्लास बहुत बढ़िया है प्रभु नाम और राम और नाम जो कहले से भल लगे प्रभु
ये भक्ति मार्ग रे केमती ये करिया सेटा भी मते कहले बहुत भल लागला प्रभु कौन जी प्रभु आगे होती हरे कृष्ण प्रभु दान Thank you. We will close this session here. Vancha Kalpataru Parshadu Ucha Patana Pavana Pure Vaishnava Namananda Koti Vaishnava Deki Jai Shri जय Prabhupada Ki Jai. जय Please forgive any mistake from my side. Hare Krishna. हरे कृष्णा।